Assalamu alaikum guys. Am I audible to all? Yes, you are audible. Your voice is loud and clear. I welcome you all in this scholarship webinar series by Pakistan Society of Plant Breeders and Geneticists. This is our second scholarship webinar series. Last year, we successfully conducted a number of webinar series, and a lot of students got benefited from that. Today's webinar series is about MEC Scholarship, a gateway of academic excellence in Japan. First of all, Pakistan Society of Plant Breeders and Geneticists का introduction करवाऊंगा. Pakistan Society of Plant Breeders and Geneticists is a pioneer platform in Pakistan for plant breeders and geneticists that is playing a role in community development of students and scientists in Pakistan. Moreover, we are also conducting number of activities of our department in the university to keep young generation up to mark at scientific levels for competing world, like this webinar series. Today's session is about MEC Scholarship, a gateway of excellence, a gateway of academic excellence in Japan. And our speaker is Mr. Muhammad Abdullah. He completed his graduation in BS Honors Agriculture at Department of Plant Breeding and Genetics, University of Agriculture, Faisalabad. He completed his undergrad internship at Agricultural Biotechnology Research Institute at UB Agricultural Research Institute, Faisalabad. And before getting this scholarship, he also completed his first year of his master's degree at University of Agriculture, Faisalabad through Dr. Khurshid Alam Excellent Scholarship. Currently, he is pursuing his master's in International Dryland Agricultural Sciences at Graduate School of Sustainability at Tottori University, Japan. His research is related to plant breeding and microbiology. Before starting in this session, I again welcome you all, and we're gonna start this session. तिलावत कुरान पाक से आगाज करते हैं, तो उसके लिए जरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيम. सेशंस के जो सवालात होंगे वो सेशन के एंड पे ले जाएंगे, तो काइंडली ड्यूरिंग द सेशन कोई सवाल न करे. सेशन के एंड पे तमाम लोगों के सवालात लिए जाएंगे. नाउ ओवर टू यू मिस्टर अब्दुल्ला. Thank you so much, Usman, for introducing for my introduction and providing me. And I'm also thankful to Pakistan Society of Plant Breeders and Geneticists for providing this platform. So ये आपके लिए बड़ी एक खुशी की बात होती है कि आपने जिस डिपार्टमेंट में पहले पढ़ा हो और जिस सोसाइटी में आपने सर्व किया हो, तो आप कभी उस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. तो थैंक यू सो मच. तो जैसे आपने बताया, पहले प्रेजेंटेशन हो जाएगी और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपके एंड पे हो जाएंगे. जिनके क्वेश्चंस होंगे वो अपने हैंड रेज कर लीजिएगा, फिर ये आपको वन बाय वन अलाउ कर देंगे और आपके क्वेश्चन पूछ सकेंगे. और जिनका कोई माइक वगैरह का इशू है या जो नहीं बोल सकेंगे, वो अपने जो क्वेश्चन हैं वो चैट बॉक्स में भी पुट कर सकते हैं. तो मैं खुद भी देखता रहूँगा और उस्मान भी उन क्वेश्चन को आंसर करते रहेंगे. So without consuming much time, let's go toward presentation. Social science students. Okay, so first question पहले ही आ गया, तो मैं पहले इनका आंसर दे ही दूँ. ये जनरल होगा वेबिनार. आपको मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाएगा. आपका बैकग्राउंड कौन सा है, सोशल साइंसेज है आपका बैकग्राउंड, बेशक साइंस के लिहाज से है या जिस भी लिहाज से है, इसमें आपको सिर्फ स्कॉलरशिप की डिटेल मिलेगी, ना किसी के स्पेसिफिक प्रोग्राम की. ओके उस्मान, चेक कीजिएगा मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है. अब्दुल्ला भाई पहले हो रही थी, इस बार ऑफ हो गई. अब हो रही है? हम्म, अभी नहीं हो रही. जी जी अब्दुल्ला भाई हो रही. ओके, तो मिनट से अब हो रही है आपको स्क्रीन शेयर. अब्दुल्ला चैट भाई में आप बता स्टार्ट रहे हैं. करें. ओके ओके, थैंक यू सो मच.
So our today's topic is MEC scholarship. MEC scholarship is a gateway for academic excellence in Japan. So my name is Muhammad Abdullah, and I am a MEC scholar. I secured MEC scholar this year, and I came to Japan in 2000 in September 24 this year. So currently, I am pursuing my master's in international dryland agriculture science at Torii University, Japan, at Airland Research Center. So this is a complete research center. Previously, I was the part of Department of Plant Breeding and Genetics at University of Agriculture, Faisalabad, and I also uh, served 2 years in Pakistan Society of Plant Breeders and Geneticists. So it is an honor for me to be here today. So in this presentation, first we will see what are the prerequisites that are required for achieving any scholarship in the world. Then I will introduce you about MEC scholarship, what is MEC scholarship, and then we will look forward toward its procedures and application timelines when you can apply and how much tracks the scholarship have. Furthermore, we will also discuss the required documents and how we can prepare those documents. After that, we will have a look on how much benefit this scholarship provide to the students. Moreover, I will also provide to you some important links through which you can study more about this scholarship and you can prepare your documents and all the related things. At the end, we will go toward question answer session. So, what are the prerequisites for getting any scholarship? जब भी आप किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो आपको जैसे भी आप कोई भी काम करने का इरादा करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ कुछ टूल्स चाहिए होते हैं या कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। वो सॉफ्ट साइड पे भी हो सकती हैं, वो आपके इंस्ट्रूमेंटल साइड पे भी हो सकती हैं। तो किसी भी स्कॉलरशिप को लेने के लिए ना कि वो मैक्स्ड हो या कोई भी हो, उसके लिए आपके पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। पहले तो आपकी एकेडमिक जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी होने से मुराद कि आपकी CGPA है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास आइट्स अगर है, हर चीज़ CGPA रिसर्च एक्सपीरियंस और जो भी चीज़ है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर आइट्स मेरे पास नहीं है तो मैं शायद मेरा वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल चल जाएगा या मेरा जो रिकमेंडेशन लेटर है वो कुछ रोल प्ले कर देगा। सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट रोल प्ले करती हैं। मीन टू से आपकी CV के वहाँ पे 4 मार्क्स होंगे, 4 में से आपके 2 मार्क्स हैं, अगर आपकी रिकमेंडेशन लेटर है उसके 4 मार्क्स होंगे। इस तरह हर चीज़ के मार्क्स होते हैं और उनमें से जितने मार्क्स आप लेते हैं वो प्लस कर लिए जाते हैं। अब अगर आपकी रिकमेंडेशन लेटर बहुत अच्छा भी है, CV आपकी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, या फिर आपकी रिकमेंडेशन लेटर या रिसर्च प्रपोजल तो आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है लेकिन कोई और चीज़ में आप लैग कर रहे हैं, तो उस लैगिंग की वजह से आपके नंबर वहाँ पे कटेंगे। तो इसलिए आपने हर चीज़ को अप टू द मार्क रखना होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कोई फ्यूचर इंटेंट होनी चाहिए। मीन टू से जब भी आपका प्रोफेसर इंटरव्यू लेगा, जब भी आपसे कोई ग्रेड स्कूल इंटरव्यू लेगा, जब भी आपसे कोई एम्बेसी इंटरव्यू लेगी, वो आपसे एक चीज़ जरूर पूछेगी। एक कॉमन क्वेश्चन होगा वहाँ पे, क्या फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। अब फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा होगा कि वो क्या करेगा, लेकिन फिर भी आपके पास अब एक इंटेंट होनी चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, let's suppose after completing your master, after completing your PhD, or after 10 years. So you have a short term and long term future goals. After that, you have to continuously apply in scholarship. This is a matter of continuous struggle and courage. If you have been applying 3 to 4 scholarship and getting rejections, then you can't say that no, I am not going to apply again. You have to apply multiple times, again and again, again and again, because only one successful scholarship is better than 20 to 30 rejections. So no matter how much rejections you are getting, but just apply, keep on applying. But before keep on applying, you should take one thing in your mind, that your profile should show all the things in a real way, not any fake. If you are mentioning that you have expertise in this, okay, they will accept that, okay, you have the expertise in this. But when you will go to the interview in front of them, they will very easily judge that what you have written in your CV is already present in yourself or not. So it is very important that your each and everything in your profile, either in CV, recommendation letter, acceptance letter, each and everything should be real, not fake. Because if you are preparing something fake, it will provide you some disadvantages, maybe not here, but after getting your scholarship. कि आप जापान में आ जाते हैं, किसी जगह पे चले जाते हैं, प्रोफेसर आपको कहेगा कि आपने तो CV में लिखा हुआ था, आपके पास ये टेक्निक्स हैं, तो अब मैं क्या सिखाऊं जब आपके पास तो पहले थी। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आपके पास रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। जिस भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए, और डिटेल पता होने के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रीडिंग इतनी करनी पड़ती है कि आपके 2-2 घंटे भी लगते हैं रीडिंग करने पे, कि इस स्कॉलरशिप के प्रोसीजर क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कैसे करने हैं। तो अपनी रीडिंग हैबिट आपके पास अच्छी होनी चाहिए। फिर आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप डेडलाइन मेंशन कर सकें कि ये वाली स्कॉलरशिप की डेडलाइन इस वक्त है, इस वाली स्कॉलरशिप की डेडलाइन इस वक्त है। तो ये डेडलाइन जो है इसको संभालना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरी भी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, और साथ साथ आपका जो गूगल है, सॉरी, गूगल कैलेंडर है, उसके ऊपर आपने वो लगाए हों, इवेंट्स के रिमाइंडर लगाए हों कि फलानी डेट को ये स्कॉलरशिप की डेट एंड हो रही है,
और आपने उससे पहले अपनी इसका अप्लाई करना है, तो आपने इस चीज़ को भी देखना होता है। तो उसके बाद आपके पास जो सोशल मीडिया है, जिसको आप व्हाट्सएप कहते हैं, जिसको आप यूट्यूब कहते हैं, जिसको आप इंस्टाग्राम कहते हैं या लिंक्डइन कहते हैं, वो आपकी इतने एक्टिव होनी चाहिए कि जब आप उसको पहली दफ़ा भी खोलें तो आपके पास किसी ना किसी स्कॉलरशिप की अपडेट आई हुई हो कि ये वाली स्कॉलरशिप फलानी यूनिवर्सिटी में इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ओपन हो चुकी है और आपको उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, वो आपके रेलिवेंट नहीं, रेलिवेंट है तो आप अप्लाई करेंगे, नहीं रेलिवेंट तो छोड़ देंगे, लेकिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव होने चाहिए। और जब आप खुदा ना खास्ता आपको एक साइड पे रिजेक्शन मिल जाती है और आप अब अगली स्कॉलरशिप में अप्लाई करने लगे हैं, अगर आपने पिछली स्कॉलरशिप में जो अप्लाई किया था जहाँ से आपको रिजेक्शन मिली है, अब आपने अगर वही डॉक्यूमेंट उठा के दोबारा सबमिट करवाने हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको दोबारा भी रिजेक्शन मिलेगी। अगर आपने एक स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है और उसमें आपको रिजेक्शन मिल गई है, तो आप लोगों के साथ डिस्कस करें जिन्होंने उस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था और उनको भी रिजेक्शन मिली है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी प्रोफाइल में और उनकी प्रोफाइल में कौन सी कॉमन चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको भी रिजेक्शन और आपको भी रिजेक्शन मिली है, और फिर वो बंदा भी ढूंढे जिसको एक्सेप्टेंस मिली है, और देखें कि उसने क्या डिफरेंट डिफरेंट किया था, ताकि आप अगली दफ़ा वो चीज़ अपने प्रोफाइल में लेके आ सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अगली स्कॉलरशिप में इंप्रूव करके रखें। तो इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप इसको पीछे रख ही नहीं सकते। लेकिन अब दो तरीके हैं, दो तरीके हैं आपके पास। डेट, लेट मी, ओके, थैंक यू। सो दो तरीके हैं आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप एआई पे जाएं, आप जाएं ग्रेमनी पे जाएं, आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसको कहें कि मुझे फलानी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, मुझे वो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के दे दो, या मुझे कोई चीज़ लिख के दे दो, वो आपको बड़ा अच्छा लिख के दे देगा। और लिखने के बाद आप उसको सबमिट भी करवा देंगे, लेकिन वो सबमिट करवाने के बाद जब उनके सिस्टम में जाएगा तो वो बड़ी आसानी से इसको एआई डिटेक्ट करके उसको आपकी एप्लीकेशन को पीछे कर देंगे। तो इसका सबसे बेहतर हल ये होता है कि पहले आप उस ग्रेड स्कूल की रिक्वायरमेंट को देखें कि ग्रेड स्कूल आपसे चाहता क्या है। उसने जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर बनाने के वहाँ पे रूल्स लिखे होंगे। उन रूल्स को पढ़ते हुए आप अपना, बेशक आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आप सबसे पहले अपना जो मोटिवेशन लेटर है या आपके पास जो लेटर ऑफ जो भी आपने लिखना है वो खुद लिखें। इवन के रिकमेंडेशन लेटर भी अगर आपको टीचर कहता है खुद बना के लेके आओ, तो आपने वो खुद ही लिखना है। जो भी आपको जो भी लिख सकते हैं, गंदा लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं लिखें। पहली दफ़ा लिखें, 3 दफ़ा उसको गलत लिखें, फिर एक वक्त आएगा आप उसको इंप्रूव करते जाएंगे। जब आप उसको चीज 5 6 दफ़ा इंप्रूव कर लें, फिर उसको दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। फिर दें ना उसको कॉपी करके पेस्ट वहाँ पे ना करें। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिक्वायरमेंट्स बताएं कि ये ग्रेड स्कूल है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे अप्लाई करना है, मुझे लिख के दो। अब आपको बड़ा अच्छा लिख के दे देगा। अब आपने वहां से उसको कॉपी नहीं करना, उसके अंदर जो अच्छी लाइनें हैं या जो आपको लगता है कि आपके रिकमेंडेशन लेटर में या आपके जो लेटर ऑफ मोटिवेशन आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो वीक लाइनें हैं, आप उसके साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस उठा के नहीं करना, रिप्लेस उसको आप लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, उसको थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा फ्रेंड समझ के उससे मशवरा लेना कि उसका किया हुआ काम अपनी साइड पे पुट करें। तो ये चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि ग्रेड स्कूल 2 मिनट लगाता है डिटेक्ट करने में, 2 मिनट भी दूर की बात है, 2 सेकंड शायद लगाए। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी स्कॉलरशिप इज जर्नी ऑफ 50-50। 50% आपका लक कि अल्लाह ताला ने आपके लिए प्लान क्या किया हुआ है, बल्कि 50% ही सब कुछ ही वो है, और 50% आपकी स्ट्रगल, वो स्ट्रगल भी आप अल्लाह ताला के दिए हुए स्किल्स के या कह लें कि उनकी वजह से करते हैं। तो अपने पेरेंट्स की दुआएं जरूर लें, अपने पेरेंट्स को बताएं कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अपने कहें कि आपके लिए दुआ करें, और इससे बढ़ के अपने टीचर्स को कहें कि वो सिर्फ आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर नहीं बना रहे होते, उनकी दुआएं भी बहुत बहुत मैटर करती हैं। और ये भी बड़ी बात होती है कि एक टीचर अपना टाइम निकाल के आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख रहा है, या अगर आप उसको उनको बताते हैं कि आप फलानी डेडलाइन है और ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करवाना है, तो ये भी बड़ी बात है कि वो अपना टाइम निकाल के आपके लिए रिकमेंडेशन लिख के फिर सबमिट करवा रहे हैं। तो अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन में रहें। अपने फ्रेंड्स जो आपके दोस्त हैं, जो आपको इस जर्नी में, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे हूं, तो मेरे पीछे मेरे वालिदैन और टीचर्स के अलावा मेरे दोस्तों का बहुत हाथ है। जब मुझे थोड़ी सी भी कोई चीज़ की जरूरत थी, उन्होंने, अगर किसी ने मुझे अपना बाइक भी प्रोवाइड किया ना, तो उसने मेरी स्कॉलरशिप में बहुत रोल प्ले किया है जब मुझे जरूरत थी। तो इसलिए आपको हर एक शख्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने दोस्तों का शुक्रगुजार होना चाहिए इस जर्नी में, जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी आपकी मूविंग फॉरवर्ड। अब ये मैंने एक बेसिक स्लाइड ऐड की है, क्योंकि बहुत से लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं कि पहले तो हमें ये बताएं कि स्कॉलरशिप होती क्या है और कितनी तरह की होती है। तो ये मैंने एक स्लाइड ऐड की थी कि टोटल 4 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें आप जिस चीज़ को देखते हैं, कुछ होती है कंसोर्शियम बेस के, कुछ कंट्रीज ने मिलके एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम डेवलप किया है जिसमें आप अप्लाई करते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसकी जो बेसिक एग्जांपल जो बहुत फेमस है, उसमें आपको पता है, रासमस म्यूडस है, मेरी क्यूरी फॉर पीएचडी है, रासमस फॉर मास्टर है, या कॉमनवेल्थ है। ये कुछ 5 से 6 कंट्रीज का एक गठजोड़ होता है, जिसका आप कह लें कम्बिनेशन होता है, जिसमें वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बच्चे सेलेक्ट करते हैं, और इसकी सीट्स लिमिटेड होती हैं, आप उसमें सेलेक्ट होते हैं। एक, अब लेट्स सपोज उस कंसोर्शियम में 6 मुल्क हैं, ये 6 कंट्रीज हैं, एक साल में आप एक मुल्क में पढ़ेंगे, दूसरे साल दूसरे मुल्क में पढ़ेंगे, तीसरे साल तीसरे मुल्क में पढ़ेंगे, इस तरह का कम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, मतलब मीट से ये इनका क्राइटेरिया बहुत सख्त होता है, और सीट बहुत लिमिटेड होती हैं, 22 24 23, इस तरह इनकी सीटें सिर्फ सीट्स होती हैं।
तो इसमें उस बच्चे को जरूर अप्लाई करना चाहिए जिसकी सीजीपीए 3.8 से ऊपर है और जिसके पास सच एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं भी है, उसने एक इंटर्नशिप भी की हुई है लेकिन उसके कंसेप्ट अच्छे हैं और उसकी फ्यूचर इंटेंट है वो इसकी तरफ जरूर जाए। दूसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप आती है वो स्टेट ओरिएंटेड आती है कि कोई एक पार्टिकुलर कंट्री अपने यूनिवर्सिटीज के थ्रू आपको पढ़ने के लिए अलाउ कर रहा होता है, जिसमें जिसकी मेन एग्जांपल मैक्स स्कॉलरशिप जापान है कि जापान अकेला अपने मुल्क में दूसरे मुल्क के लोगों को अलाउ करता है कि वो यहाँ आके पढ़ें स्कॉलरशिप के ऊपर। सीएससी चाइना की दूसरी जो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट है, अमेरिका की जीकेएस है, कोरिया की, इस तरह फिर तुर्की बुर्सलारी है तुर्की की। तो ये स्कॉलरशिप है, इनमें भी कंपटीशन होता है। ये आपके डिपार्टमेंट से या आपकी यूनिवर्सिटी से आपके फील्ड से सिर्फ 1 से 2 बच्चा इन्होंने लेना होता है, इनका क्राइटेरिया होता है। तो इन स्कॉलरशिप में भी आप अप्लाई जरूर करें। और अगर किसी की सीजीपीए 3.6 से 3.8 से ऊपर है, 6 से भी ऊपर है, वो भी इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। लेकिन सीजीपीए कम होने की वजह से आपको कुछ सपोर्टिंग चीज़ें और चाहिए होंगी, जैसे एक ही इंटर्नशिप की बजाय 2 इंटर्नशिप्स आपके पास हों। अगर आपने कोई पेपर लिख लिया है तो आपके पास वो पेपर भी हो। आपके पास वो पेपर भी हो। अगर आपके पास पेपर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन वीक पड़ गई है और आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब आप बाहर आएंगे आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने कितने पेपर लिखे हुए हैं और क्या आपने लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है अंडर ग्रेजुएट के बाद। मास्टर के लिए जब आप आएंगे, हाँ पीएचडी के लिए आए तो बात और है, वो आप पेपर डिमांड करते हैं क्योंकि वो तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि पीएचडी पूरी करनी है आपने, तो 2 पेपर आपने पब्लिश करने ही करने हैं। पेपर आपके पास है, रिव्यू आर्टिकल है, एनफ। आपने सिर्फ ये बताना है कि आपको साइंटिफिक राइटिंग आती है। अगर आपको साइंटिफिक राइटिंग मास्टर में आने के लिए आपके पास कोई पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसको आपने बर्डन नहीं समझना। तीसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप होती है वो यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड होती हैं कि यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप, ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड होती है कि इसमें यूनिवर्सिटी आपको कोई टीएशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप दे देती है, या आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप के अलावा डायरेक्टली आपको फंड कर रही होती है कि आप उनकी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ें और वो आपको फंड करेंगे। लेकिन इसका जो स्टाइपेंड होता है वो स्टाइपेंड कुछ लिमिटेड होता है और ये फुली फंडेड नहीं होती। कि कभी कभी यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपनी टिकट खुद करवाएं, कभी कभी वो खुद कहती हैं कि आप अपनी डॉर्मेट्री का खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे, हम सिर्फ आपकी फी वेव करेंगे और आपको कुछ स्टाइपेंड देंगे। और कभी कभी यूनिवर्सिटी सिर्फ फी वेव करती है, बाकी आपने खुद करना होता है। ये तीसरी तरह की स्कॉलरशिप होती है। चौथी तरह की स्कॉलरशिप होती है कि प्रोफेसर के पास कुछ फंड्स हैं, उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपने उसको अप्रोच किया, उसने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे आए मेरे साथ आके रिसर्च करें। और आप मोस्टली पीएचडी वालों को ज़्यादा चांस मिलता है यहाँ पे। तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके पास जाएं, वो आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो वेव करवा देंगे और आपको वहाँ रहने के कुछ अमाउंट देंगे जिसमें आपकी जो लिविंग एक्सपेंसिव है और वहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो आपको उसमें से कवर अप होता जाएगा। तो ये 4 तरह की स्कॉलरशिप होती है। जिन लोगों के पास रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनकी सीजीपीए कम है, वो इस फोर्थ टाइप स्कॉलरशिप में जरूर अप्लाई करें। प्रोफेसर बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, या आपको डिफरेंट कुछ वेबसाइट्स हैं कनाडा की और कुछ हैं अमेरिका की भी, कनाडा की हैं और कुछ यूरोपियन वेबसाइट है, वहाँ पे आप अप्लाई करें तो आपको ये बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को ढूंढने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। स्टेट ओरिएंटेड तो आपको ग्रुप से भी मिल जाती हैं कि फलाने कंट्री की स्कॉलरशिप ओपन होगी, और कंसोर्शियम की भी ऐसे ही है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सब में अप्लाई करें। लेकिन अगर एक बंदा जिसकी सीजीपीए 3.4 है और वो कहे कि मैंने कंसोर्शियम बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, तो उसको सोचना चाहिए कि वहाँ पे लिमिटेड सीटें होंगी, तो उसकी बजाय वो यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड स्कॉलरशिप जहाँ पे कम होगा कंपटीशन, वहाँ देखे, प्रोफेसर बेस्ड फंडिंग की तरफ देखे। तो ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी को लगता है कि उसकी सीजीपीए कम है लेकिन उसकी बाकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो वो कंसोर्शियम बेस्ड स्कॉलरशिप में भी जरूर अप्लाई करे। ये कुछ की रिसोर्सेज हैं जिनको जिनको बेस बना के आप स्कॉलरशिप हंट कर सकते हैं। ये मैंने स्कॉलरशिप से डाली कि आप सभी लोग इंक्लूडिंग मी, हम गूगल भी यूज़ करते हैं, लिंक्डइन भी है, यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है। ये हमारे जनरल रिसोर्सेज तो हैं कि हम इसको डेली बेस की कम्युनिकेशन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इनको अपनी स्कॉलरशिप हंटिंग में इस्तेमाल करेंगे तो इससे बढ़ के आपको बेनिफिशियल चीज़ नहीं मिलेगी। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? मिसाल के तौर पे आपने कुछ व्हाट्सएप पे कुछ आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, लेट्स सपोज, और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि फलानी स्कॉलरशिप ओपन हो गई है। मिसाल के तौर पे आपको पता लगता है कि मैक्स की स्कॉलरशिप ओपन हो गई है, उसकी ये से लेके ये डेट है, एम्बेसी ट्रैक की आपको पता लगती है। अब आप क्या करेंगे? अब आप गूगल पे जाएंगे, उस स्कॉलरशिप का नाम लिखेंगे, उसके रिलेटेड जो डिटेल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डेडलाइन है, वो आप अपनी नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन में कोई मसला आ रहा है तो आप यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस पड़ी होंगी, आपने कैसे उन एप्लीकेशन को फिल करना है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको यूट्यूब से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिंक्डइन को भी एक्टिव रखें, क्योंकि लिंक्डइन को आपसे, और ट्विटर में, यहाँ पे ट्विटर और उसको फेसबुक को करना भूल गया हूँ। फेसबुक पे जो 2 ग्रुप्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही पता होगा, पाकिस्तान स्कॉलरशिप नेटवर्क और एक और है पाकिस्तान स्कॉलरशिप कौंसिल शायद। इस तरह वो 2 ग्रुप हैं, उसके मैं लिंक भेज दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज्वाइन करें। वो सिर्फ स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप के लिए हैं, तो आपको वहाँ पे डिटेल मिलती रहेगी। मेरे केस में ये था कि लेट्स सपोज अगर मुझे मैक्स का कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और मुझे नहीं पता कि वो कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे डीन का रिकमेंडेशन लेटर है, अगर मुझे वो प्रिपेयर करना है तो मैं क्या करता था, मैं उस स्कॉलरशिप में, फेसबुक के स्कॉलरशिप में जाके पोस्ट कीवर्ड यूज़ करता था और मुझे 2017 की पोस्ट भी मिलती थी। अब 2024 चल रहा है, 2017 की पोस्ट मिलती थी और वो मेरे रेलिवेंट होती थी। तो मीन टू से किस तरह आप अपने इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। डाटा डाटा को देखना, डाटा को एक्वायर करना, और डाटा, इतना ज़्यादा डाटा होने के बावजूद अपने मुताबिक डाटा निकालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करें। और इसमें ट्विटर भी है। अगर आप प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिंक्डइन और
ट्विटर को एक्टिवली स्कॉलरशिप के लिए यूज़ करना चाहिए, और इसमें आप जो फॉरेन प्रोफेसर हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, तो ये आपको बेनिफिट देंगे। ओके, सो नाउ अब हम जापान का जिक्र करते हैं कि जापान आपको क्या देता है और जापान में आने की आपको क्यों ज़रूरत है। तो जापान आपको स्टेम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये एक एकेडमिक एक्सीलेंस का हब है। यहाँ पे आपको स्टेम बेस्ड एजुकेशन मिलेगी, मोर रिलेटेड टू साइंस एंड रिसर्च। सो यहाँ पे कटिंग एज आपको रिसर्च मिलेगी। अगर आप यूट्यूब पे, आप उस पे गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं दुनिया में वो जापान से हैं। तो जापान जो है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है बजाय पेपर पब्लिश करने के। इनके आपको मोस्टली पेपर अपने ही लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट है वो आपको दुनिया में मिलेंगे। पेपर अपनी लैंग्वेज में मिलेंगे, प्रोडक्ट्स आपको इनके दुनिया में मिलेंगे। मेरे पास जो मेरे में वाच है वो कैशियो, वो इनका ब्रांड है। इवन आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो इनके ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इवन चाइना के भी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के भी हैं, लेकिन ये ऐसा कंट्री है जो अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है बजाय पेपर को सपोर्ट करने के। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्टेम बेस्ड एजुकेशन, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पे पढ़ने से आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जिसकी वैल्यू है, जिसको लोग समझते हैं, मानते हैं, तो इसको आपको यहाँ पढ़ने का फ़ायदा होगा। बाकी आपकी सेफ्टी के लिहाज से, नेचर के लिहाज से, एयर इंडेक्स यहाँ पे पोल्यूशन का ज़ीरो है। और क्लीननेस आपको यहाँ पे, आपको अगर आपने जापान के फ्लड देखे हो तो वहाँ पे एक रैपर भी आपको नहीं मिलता। आप यहाँ पे इतने सेफ हैं कि अगर आप आपकी कोई चीज़ आप जहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं तो अगले दिन वापस आते हैं, चीज़ आपको वहाँ मिलेगी, या आपके घर पे पुलिस वाला आपको चीज़ पकड़ाने आएगा कि आपकी ये फलानी चीज़ वहाँ रह गई थी, तो आपकी ये चीज़ है। मैं अपना यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी का कार्ड था वो लाइब्रेरी में भूल गया। मुझे पता भी था मैं लाइब्रेरी में भूल गया। मैं अपने रूम में आया तो जब मैंने सोचा कि अब दूसरी क्लास लेने जाना है तो मैं वहाँ से उठा लूंगा। इससे पहले मैं बाहर निकलता कि मुझे डिपार्टमेंट से मेल आई कि आपका अपना लॉस्ट कर दिया है, हमारे पास है, आप यहाँ से आके ले लें। तो ये एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पे आपकी चीज़ अगले दिन वहीं पे आपको मिलेगी। यहाँ पे पढ़ने का फ़ायदा ये है, अगर आप मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू आ भी जाते हैं तो आप फर्दर एक्सचेंज प्रोग्राम पे आगे भी जा सकते हैं, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, 2 वीक्स के लिए। तो आपको यहाँ पे फर्दर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो इंडस्ट्रियल पर्सन हैं या इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट हैं उनके लेक्चर भी मिलेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्स बिल्कुल नहीं होते जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि हर हर कंट्री का अपना एक है डिमांड, लेकिन यहाँ पे एग्जाम नहीं होते। आपको ये बाहर इंडस्ट्री से आके लोग लेक्चर देते हैं, और आपने मंथली या वीकली आपने अपनी रिपोर्ट्स या असाइनमेंट्स जमा करवानी होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जापान एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। यहाँ पे ये अपने कल्चर को सपोर्ट करते हैं। इनका एक छोटा सा इवेंट भी है, ये उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये एक ट्रेडिशनल कंट्री है, और इनके जो फेस्टिवल हैं वो वेल रिनाउंड हैं दुनिया में। अगर इनके विंटर में अगर पत्ते झड़ भी रहे हैं दरख्तों के, तो ये उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। ये किस तरह का कंट्री है, तो यहाँ पे आप बोर नहीं होंगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल आप यहाँ से ले लेंगे। 2024 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक दुनिया में जापान दूसरे नंबर पर है 2024 में बेस्ट कंट्रीज इंडेक्स में। पहले पे मेरे ख्याल डेनमार्क है, तो दूसरे नंबर पे जापान है। जापान 2023 में 6 नंबर पे था, तो अब ये दोबारा दूसरे नंबर पे है। तो ये जो इंडेक्स क्रिएट किया जाता है, बेस्ट बेस्ट कंट्रीज का इंडेक्स, ये सब जस्टिस को, सेफ्टी को, क्लीननेस को, हर चीज़ को मद्देनजर रख के क्रिएट किया जाता है। तो आप इस ज़्यादा क्या बोलना, आप इससे सिर्फ समझ लीजिएगा कि जापान बेस्ट कंट्रीज के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। सो व्हाट इज नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्कॉलरशिप एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड जापान की स्कॉलरशिप है। और ये इनका एक डिपार्टमेंट है जापान का, जापान गवर्नमेंट का, जो एजुकेशन, कल्चर, साइंस और स्पोर्ट और टेक्नोलॉजी को इन्होंने मिल के बनाया हुआ है, जो फॉरेन स्टूडेंट्स को एक मौका प्रोवाइड करता है कि वो इनके कंट्री में आके पढ़ें। अब इस स्कॉलरशिप के 2 ट्रैक्स होते हैं, एक है एम्बेसी ट्रैक, एक है यूनिवर्सिटी ट्रैक। अब एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक में जो डिफरेंस है वो ये है कि एम्बेसी ट्रैक जो है वो मास्टर्स, बीएस मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है वो सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, बीएस का यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और एम्बेसी ट्रैक हाईली कॉम्पिटिटिव है, और क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान को हर साल इसकी 7 से 11 सीट दी जाती हैं, कि 7 से 11 लोग सिर्फ पाकिस्तान से जापान आ सकेंगे एम्बेसी ट्रैक के थ्रू, जब ये ट्रैक ओपन होगा। इसके कंपेयर अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक को आप मद्देनजर रखें तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं, और अनलिमिटेड होती हैं, बल्कि ज़्यादा नहीं, अनलिमिटेड होती हैं। और ये इसमें कंपटीशन कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं। इस दफ़ा जो पाकिस्तान से लोग जापान में आए हैं इस स्कॉलरशिप के ऊपर, उनकी तादाद 90+ है। तो उनकी तादाद 90+ है। तो अब कहाँ कहीं एक साइड पे सिर्फ 7 बच्चे सेलेक्ट होंगे एक ट्रैक पे, और एक साइड पे 90+ सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक पे सेलेक्ट होने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये लेस कॉम्पिटेटिव है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अनलिमिटेड सीट्स हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक में। एम्बेसी ट्रैक में लिमिटेड सीट्स हैं। और एम्बेसी ट्रैक आपसे हायर डिमांड करती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर आपकी जो आपके ग्रेड्स हैं वो हाई, वो ज़्यादा अच्छे हों।
इन दिस केस यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी वो आपसे यही डिमांड करते हैं कि आपके ग्रेड्स और आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हों, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन कम होता है, एग्रीगेट कम होता है, क्योंकि इसलिए कम होता है कि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़, जब भी आप जापान में अप्लाई करने लगेंगे इस स्कॉलरशिप पे, तो आपको एक चीज़ वहाँ पे मिलेगी कि 80% आपके मार्क्स होने चाहिए। 80% सीजीपीए नहीं होनी चाहिए, 80% आपके एग्रीगेट होनी चाहिए। कि लेट्स सपोज अगर आपके बैचलर्स में से 2800 में से 2200 नंबर हैं, आप उसको डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने एग्रीगेट बनते हैं। तो ये एग्रीगेट डिमांड करते हैं, सीजीपीए नहीं। एम्बेसी ट्रैक में आपको 80% लास्ट डिग्री में 80% एग्रीगेट चाहिए होता है, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये थोड़ा सा अकोमोडेट हो जाता है कि अगर आपकी 75 या 78% भी है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। जापान में पढ़ने का आपको ये फ़ायदा है, दोनों ट्रैक के थ्रू जब भी आप आएंगे, 2 साल का यहाँ पे मास्टर्स है, लैंग्वेज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने यहाँ की लैंग्वेज सीखनी है। 1 साल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी मर्जी है, आप इनका लैंग्वेज का कोर्स ज्वाइन करना चाहें कर लें, नहीं करना ना करें, आपकी मर्जी है। और पीएचडी यहाँ पे 3 साल की है, ये सबसे बड़ा एज है कि आप अपनी जल्दी पीएचडी खत्म करके जा सकेंगे यहाँ से। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं कि इसके जो एप्लीकेशन प्रोसीजर हैं और टाइमलाइन है कि कब ये स्टार्ट होता है और कब ये एंड होते हैं, ये दोनों ट्रैक्स जिनका मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं एम्बेसी ट्रैक का। इसमें एम्बेसी ट्रैक में सब कुछ एम्बेसी के हाथ में होता है। जो एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान है, जो जापान की एम्बेसी पाकिस्तान में है, ये सब कुछ वो हैंडल कर रही होती है, ना कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी जापान में है। जो जापान की एम्बेसी पाकिस्तान में है वो सब कुछ हैंडल करेगी। और इसमें हर साल मार्च और अप्रैल में, ये इनकी वेबसाइट जो है, इसका मैं लिंक हैंड पे दिया भी हुआ है, आपको मार्च और अप्रैल पे इनकी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी इनकी वेबसाइट पे कि ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी हैं, और ये स्कॉलरशिप आपके कंट्री में अनाउंस हो चुकी है। तो आप अपने मार्च अप्रैल में जब डेडलाइन आएगी, तो अप्रैल से मई तक एक डेडलाइन होती है कि अपने एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी, पहले उसकी प्राइमरी स्क्रीनिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करेंगे, और एक टेस्ट भी होगा। टेस्ट में अब ऐसी दो चीज़ें चेक करती है, एक तो आपकी इंग्लिश चेक करती है, और दूसरा आपकी जैपनीज लैंग्वेज चेक करती है। अगर आपकी जैपनीज लैंग्वेज जीरो भी है, इनको आपकी एप्लीकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ चेक करना चाह रहे होते हैं कि जो एस्पायरेंट आ रहा है उसको कोई जैपनीज लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं। मोस्टली लोगों को नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ ये आपका टेस्ट इंग्लिश का चेक करते हैं मेनली। तो एक टेस्ट होता है हल्का सा, और आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पास कर लेते हैं, वो टेस्ट पास कर लेते हैं, तो जुलाई और अगस्त में आपको कहा जाता है कि अब आप जापान में जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहते हैं, आप उसके जो इंटरनेशनल अफेयर डिवीजन है उसको ईमेल करें। ईमेल करके बताएं कि आपको आपके कंट्री में जो जापानीज एम्बेसी है उसने आपको सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आपसे वो एडमिशन लेटर डिमांड कर रहे हैं। तो आप फिर उस यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करेंगे और उससे एडमिशन लेटर लेंगे। एडमिशन लेटर लेने के बाद वो एडमिशन लेटर आप दोबारा अपनी एम्बेसी को ईमेल के थ्रू सबमिट करवा देंगे, और ये सितंबर में होगा। सितंबर में आप जब अपना वो फाइनल एडमिशन लेटर सबमिट करवाएंगे, जो आपको जापानीज यूनिवर्सिटी से मिला होगा, तो आपकी फाइनल स्क्रीनिंग होगी। वो उसको आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि जो आपने डॉक्यूमेंट लिया है वो ओरिजिनल है, आपने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो नहीं किया था जापान में। तो जब आपको फाइनल स्क्रीनिंग में भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, फिर आपको जनवरी और मार्च अगले साल, आपको जनवरी और मार्च में आपको अपना फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपको वीज़ा अलाउ होगा, टिकट्स आपको मिल जाएगी, और आप अप्रैल में यहाँ आ जाएंगे। जापान में जो स्टार्टिंग इनकी है, दो दो इनके दो हैं इनके स्टार्टिंग। एक साल में 2 दफ़ा इनका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, अप्रैल में और अक्टूबर में। तो जब भी आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करेंगे, आप पिछले मार्च अप्रैल में अप्लाई करेंगे, अगले साल अप्रैल में जापान में अपना आके सेमेस्टर पहला शुरू करेंगे। तो ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस बता दी हैं, अगर आप इस फर्दर रीडिंग के पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको ऑटोमेटिकली दो दो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ले जाएगा। जो मैंने आपको चीज़ बताई हैं ये डिटेल में वहाँ भी बताई होंगी, और इसमें एक लिंक आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे भी ले जाएगा, जहाँ पे 2025 की गाइडलाइन मेरे ख्याल में पड़ी होंगी शायद, आप वो देख लीजिएगा। तो अभी चलते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक का क्या है। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे सब कुछ एम्बेसी कर रही होती है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू सब कुछ आपका प्रोफेसर संभाल रहा होता है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोफेसर, इसलिए क्योंकि प्रोफेसर के हाथ में सब कुछ होता है यहाँ पे। तो आप इसका जो टाइम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसमें आप अप्रैल और मार्च में अप्लाई अगर कर रहे थे, तो इसमें आपने अप्लाई करना है अगस्त और नवंबर में। अगस्त और नवंबर में आप अपने प्रोफेसर जो आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, इसका क्राइटेरिया ये होता है, सबसे बेहतर ये हल होता है कि आपका लेट्स मेरा फील्ड एग्रीकल्चर है, तो मैं गूगल पे जाऊँगा, वहाँ जाके लिखूंगा बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन जापान, तो मुझे कुछ 10-12 यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। मैं उनकी स्क्रीनशॉट ले लूँगा या लिस्ट बना लूँगा। अब हर यूनिवर्सिटी की मैं वेबसाइट खोलूँगा और देखूंगा कि वाकई उसमें मेरा प्रोग्राम था। अगर तो मेरा प्रोग्राम है तो क्या उसमें मेरे रेलिवेंट प्रोफेसर या लैब मौजूद है। अगर मुझे प्रोफेसर और लैब मिल जाती है, तो मैं फिर उनको ईमेल करूंगा कि मैं मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू, यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू आपके पास आना चाहता हूं। अगर आपके पास स्पेस है और आप इस साल कोई स्टूडेंट लेना चाहते हैं, तो काइंडली मेरी जो रिक्वेस्ट है इसको देखें।
प्रोफेसर क्या करते हैं जापान में मोस्टली इस स्कॉलरशिप के थ्रू? प्रोफेसर सबसे पहले आपको रिस्पॉन्स देते हैं कि ठीक है, मोस्टली जो लोगों के साथ हुआ, क्योंकि जो 96 लोग इस दफ़ा पाकिस्तान से इस स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू आए हैं, उनके साथ मोस्टली सेम प्रोसीजर ही हुआ। सब प्रोफेसर ने सेम प्रोसीजर ही किया कि उन्होंने कहा कि आप अपनी एक पीपीटी बनाएं, आप एक अपनी पीपीटी बनाएं और उसमें आप ये बताएंगे कि आपने अभी तक क्या किया है अपने बैचलर्स में या मास्टर्स में। अगर आप पीएचडी के लिए आना चाहते हैं, अगर आप मास्टर के लिए आना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि बैचलर्स में बताएं आपने क्या किया है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। यहाँ पे वो आपसे प्रपोजल डिमांड नहीं करते, वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कि आपने अभी तक क्या किया है, क्या स्किल्स हैं आपके पास, और आप फ्यूचर में क्या करने का वो है, वो ख्वाब देखते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका फ्यूचर इंटेंट होनी चाहिए। वो आपसे आपका इंटरव्यू लेके आपको आपको अगर आप उस इंटरव्यू को पास कर जाते हैं और प्रोफेसर को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो अब आपको प्रोफेसर मैक्स के डॉक्यूमेंट सेंड कर देगा। हो सकता है कि आपको इनिशियली वो पिछले साल के डॉक्यूमेंट सेंड करे, कि क्योंकि पिछले साल के डॉक्यूमेंट्स और इस साल के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा सिर्फ फर्क होता है, मोस्टली वो सेम ही होते हैं। तो आपको इस साल के या पिछले साल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरवर्ड कर देंगे, आप उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे अगस्त और नवंबर की डेट पुट की है, लेकिन मेरे केस में मैंने अगस्त में प्रोफेसर को ईमेल करके इंटरव्यू दे दिया था, तो मेरे पास 3 माह थे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने को। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मुझे एप्लीकेशन स्टार्ट में सबमिट करवानी थी। तो जितनी अर्ली आप अगस्त से नवंबर, या लेकिन ये भी है कि लोगों ने नवंबर में भी ईमेल किया है और उनको तभी एक्सेप्टेंस मिली है। तो एक्सेप्टेंस, हाँ, एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई लेटर वहाँ पे लेना है कि आप प्रोफेसर को कहें कि मुझे कोई लेटर बना के दो। नो, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि वो आप इस चीज़ पे कायल होगा कि आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा मैक्स स्कॉलरशिप के लिए थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप उसको फिल करके देंगे, वो आपसे लेके यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा। तो जब आप अपने नवंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देते हैं, जब आपको प्रोफेसर ने दिए होते हैं, तो दिसंबर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर को भेजते हैं। भेजने के 2 तरीके होते हैं। अक्सर प्रोफेसर आपको कहते हैं, मोस्टली आपको प्रोफेसर यही कहते हैं कि आप अपने जापान में डॉक्यूमेंट भेजें बाय मेल, बाय फिजिकली। तो आपने वहाँ से आप फेडेक्स को यूज़ कर लें, आप जो दूसरी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है उसको तो ना ही करें क्योंकि डिले भी हो सकते हैं। आप फेडेक्स को यूज़ कर लें, या एक दो आपके पास और इंटरनेशनल वेल रिनोन्ड वर्किंग बॉडीज़ हैं, आप उनको यूज़ कर लें। वो आपसे 8 से 10 हज़ार आपसे पैसे लेते हैं और आपके 5 से 6 दिन में आपके डॉक्यूमेंट जापान में पहुंचा देंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करवाने होते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में सिस्टम एडवांस होता है, तो वो प्रोफेसर आपको कहते हैं कि आप उनको फलाने पोर्टल पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, उनका सिस्टम डायरेक्टली है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली सबमिट करवाते हैं। मेरे केस में मैंने फॉरवर्ड किए थे। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाए होते हैं, यूनिवर्सिटी उसको उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, प्रोफेसर की जो कंसर्ट होती है उसको देखती है, फिर यूनिवर्सिटी आपका पैनल इंटरव्यू कंडक्ट करती है, जिसमें आपका प्रोफेसर भी होगा, इंटरनेशनल अफेयर डिवीजन से भी कुछ लोग होंगे, और कुछ आपके रिसर्च एरिया के रिलेटेड और लोग भी होंगे आपके प्रोफेसर के साथ। तो 5 से 6 लोगों का ये पैनल होता है। मेरे केस में 3 लोगों का पैनल था। यूजली 5 से 6 लोगों का पैनल होता है, वो आपको दोबारा इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में जो अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है, इसमें आपने अपने बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपने रिसर्च प्रपोजल भी अपने यहाँ इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है, जो कि आपने जब डॉक्यूमेंट प्रोफेसर से मंगवाए थे, जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे थे अगस्त से लेकर नवंबर तक। तो इसमें आपने प्रोफेसर को बताना है कि आप असल में पाकिस्तान में या जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं उसमें लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्रोफेसर मुझे बताएं रिसर्च प्रपोजल मैं कैसे बनाऊं। ऐसे आपको प्रोफेसर नहीं बताएगा कुछ भी, और ये तरीकाकार भी गलत है कि मुझे बताएं कि आप मैं क्या प्रपोजल बनाऊं। प्रपोजल बनाने का तरीका ये है कि आप प्रोफेसर को बोलें कि प्रोफेसर मैंने आपकी रिसर्च को थॉरली स्टडी कर लिया है, मुझे पता है कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं, मैंने आपकी लेबोरेटरी की वेबसाइट पढ़ ली है, मैंने आपके जाके आर्टिकल देख लिए हैं, मुझे पता है मैं प्रपोजल खुद बना सकता हूँ। लेकिन मैं इतनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद अगर उस ट्रैक से परे हो गया जिस ट्रैक में आपकी लेबोरेटरी काम कर रही है, तो मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो काइंडली आप मुझे कोई एक थीम बता दें जिस पे आप फ्यूचर में काम करना पसंद करते हैं, ताकि मैं उस पर प्रपोजल बना लूँ। अब ये एक अच्छा रीज़न है कि आप प्रोफेसर को बता भी रहे हैं कि आपके पास नॉलेज भी है, आप प्रपोजल बना भी लेंगे, और आपसे पूछ भी रहे हैं कि किस टॉपिक पे प्रपोजल बनाए। जब आप उसको इस तरह अप्रोच करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको प्रपोजल बनाने के लिए कोई ना कोई टॉपिक बता देगा। तो वो जो प्रपोजल आपने बनाया होगा, वो फरवरी में आप पैनल इंटरव्यू में भी बताएंगे, उनको कायल करेंगे कि आप इस टॉपिक पे आके काम करना चाहते हैं। इंटरव्यू के बाद आपको अप्रैल से मई में, अगर आपने सेटिस्फाई कर लिया, यहाँ पे सीट्स होती हैं। एक चीज़ और आपको बताऊँ, लेट्स सपोज आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था, आपने उसकी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद आपने देखा आपका प्रोग्राम आपको मिल गया। अब उस प्रोग्राम में लिमिटेड सीट होंगी। लेट्स सपोज किसी का कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको इस पहले और बता दूं कि जापान में ये होगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको जापानीज ही प्रोग्राम सारे मिलेंगे। लेट्स सपोज आपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस खोला है, या फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस खोली है, आपको वहाँ पे 7-8 प्रोग्राम मिलेंगे। 7 के 8 प्रोग्राम सारे के सारे जापानीज लैंग्वेज में होंगे, और वो जापानीज स्टूडेंट्स के लिए होंगे। लेकिन वहाँ पे एक प्रोग्राम ऐसा होगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होगा, और वो एक प्रोग्राम जो होगा वो उन्होंने कुछ मिक्स करके बनाया होगा, कुछ कंप्यूटर साइंस, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो मिक्स करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया होगा। वो आपका प्रोग्राम है। हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होगा, हर यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आप देखेंगे कि एक प्रोग्राम आपके रिलेवेंट होगा।
तो उस प्रोग्राम में जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स पूरी दुनिया से जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसमें नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंट होंगी। मेरे केस में 3 सीटें थी सिर्फ मेरे प्रोग्राम में। वो जो 2 सेलेक्ट हुए उनको भी मैं जानता हूँ, मेरे क्लास ले रहे होते हैं, तीसरा मैं था। तो इस तरह हर प्रोग्राम में लिमिटेड सीट्स होती हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होंगे जहाँ पे सिर्फ एक ही सीट होगी। तो ये मैक्स जो अदारा है वो हर यूनिवर्सिटी को लिमिटेड सीट प्रोवाइड करता है कि तीन, लेट्स सपोज अगर 12 सीटें यूनिवर्सिटी को मिली हैं तो वो 12 सीटें इस तरह डिवाइड होंगी कि 2 एक प्रोग्राम में, 2 इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर साइंस में है, 2 सीटें इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर में है, 2 सीटें किसी और प्रोग्राम में है। तो आपके केस में 3 से 5 और मिनिमम एक सीट होगी। तो आपने जब आप यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, अप्रैल से मई में आपको यूनिवर्सिटी बता देती है कि आपको हमने नेक्स्ट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है या नहीं किया। तो ये ऐसा नहीं करते। अगर 3 सीटें थी तो 3 सीटों में अगर ये कहेंगे कि आपको रिकमेंड कर दिया तो 100% उन्होंने रिकमेंड कर दिया होगा। ये नहीं हो सकता कि आपको कह दें और सीटें 3 थी, बंदों को उन्होंने 5 को रिकमेंड किया हो, ऐसा नहीं होगा। 3 सीटें थी जो 3 को रिकमेंड करेंगे, वरना ये आपको बता देंगे कि नहीं आप एप्लीकेशन फेस पास नहीं कर सके तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिल जाएगी, इसके बाद आप अगले स्टेप पे जा ही नहीं सकेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस ट्रैक में। अगर यूनिवर्सिटी आपको बता देती है और कि आपको मैक्स को फॉरवर्ड कर दिया, तो जुलाई में मैक्स जो है वो अपने फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर देता है। और अगर 100 बचा था जापान में, पाकिस्तान का 100 को 100 यूनिवर्सिटीज़ थी, मतलब 100 बच्चों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अगर नॉमिनेट किया था मैक्स को, तो ये श्योरिटी है कि 100 के 100 ही को मैक्स भी सिलेक्ट करेगा। आइदर के उसकी एप्लीकेशन में कोई गलती ना होगी हो, अ, गलती होगी नहीं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने आपको इतना स्क्रीन डाउन अच्छे से कर लिया है तो हो ही नहीं सकता कि आपका कोई डॉक्यूमेंट आगे गलत फॉरवर्ड हो जाए। तो मैक्स भी इसलिए आपको सेलेक्ट कर ही लेती है। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो या इस तरह कोई इशू बन जाए तो आपको रिजेक्ट कर देती है। तो मोस्टली ऐसा नहीं होता, आप ये फेस इजीली पास कर लेते हैं। अगस्त और सितंबर में आपको आपकी वीज़ा मिल जाता है, टिकट मिल जाते हैं, कुछ अपने प्लेज होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साइन करके आपने दोबारा भेजने होते हैं जापान में, तो वो आप यहाँ भेज देते हैं। अक्टूबर में आप जापान में आ जाते हैं और 1 अक्टूबर को आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप फर्दर इसको रीड करना चाहें तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, मैंने एक लिंक और ऐड कर दिया है। या आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देगा कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक को चेक करना है तो आपको हर यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा पहले कि क्या आइदर उसमें आपका प्रोग्राम है। पहला क्वेश्चन ये होता है इसमें आपको, क्या आपका प्रोग्राम है। अगर आपको प्रोग्राम मिल गया है तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या उसमें नेक्स्ट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू ऑफर हो रही है। अगर ऑफर हो रही है तो क्या आपके रेलिवेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर की ईमेल, ये सब कुछ देखने के बाद आपको ईमेल करते हैं। ये ना हो आपका प्रोग्राम भी ना हो या नेक्स्ट वहाँ पे ऑफर भी ना कर रहा हो तो आप वैसे ही ईमेल कर दें, प्रोफेसर को कुछ भी ना पता हो। तो इसलिए आपने ये कंफर्म करना। अगर आपको क्ल्यू मिल रहा है कि वहाँ पे स्कॉलरशिप मैक्स के थ्रू है लेकिन डिटेल नहीं मिल रही, तो आप फिर इंटरनेशनल अफेयर डिवीजन को ईमेल करें। ये ईमेल को बहुत सपोर्ट करते हैं। शायद ये अपने व्हाट्सएप का मैसेज या लाइन का मैसेज ना देखें लेकिन ईमेल को इग्नोर नहीं करते। तो आप इंटरनेशनल अफेयर डिवीजन को ईमेल कर दें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वेबसाइट से नहीं मिल रही, वो आपको वेबसाइट का लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, आप इजीली उस चीज़ को देख सकेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ आपके प्रोफेसर के हाथ में होता है, अपने प्रोफेसर के साथ ही चलना होता है। इवन कि आपको जो फाइनल मैक्स की रिजल्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको प्रोफेसर ही बताएगा। और इसके बाद फिर यहाँ से जुलाई के बाद आपका सारा सिस्टम यूनिवर्सिटी संभाल लेती है। आपको एक आपकी अकोमोडेशन देख रहा होगा यूनिवर्सिटी का मेंबर इंटरनेशनल अफेयर डिवीजन का, एक आपकी टिकट्स को देख रहा होगा, एक आपके डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मोस्टली जो इनका अफेयर डिवीजन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा आपके लिए, तो ये बड़ा ईजी हो जाता है। तो ये था इसका एप्लीकेशन टाइमलाइन और प्रोसीजर कि कैसे आपने किस डेट से कहाँ तक आपने अप्लाई करना है। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। इनके इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोस्टली सेम ही होते हैं दोनों ट्रैक्स पे, थोड़े से डिफरेंस के साथ। एम्बेसी ट्रैक में क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं था किया इसलिए मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को तो थरोली जज नहीं कर सका। लेकिन मेरे ख्याल में रिसर्च प्रपोजल नहीं होता या होता है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मोस्टली लोग अप्लाई यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू करते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होंगे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे जिसमें मैक्स का फॉर्म होगा जो हर यूनिवर्सिटी में सेम ही रहेगा। वो उसमें कॉलम्स दिए होंगे, कुछ टेबल्स बने होंगे, उसमें अपनी बेसिक आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी होगी। जो आप लेट्स सपोज आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके जो अपनी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, तो वही आपने मैक्स के एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन अपनी डिटेल पुट करनी है। और साथ एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आपने, वो छोटा होगा, वो अगर 6 पेज का है तो ये सिर्फ 1-2 पेज का होगा, तो आपने फिल करना होता है। ये रिसर्च प्रपोजल वही है जो आपने प्रोफेसर के पास डिस्कस करके दूसरे नंबर पे बनाया था, तो ये रिसर्च प्रपोजल आपने वही अटैच करना है। तीसरे नंबर पे कुछ हेल्थ सर्टिफिकेट एक आपको ये देंगे, आपको एक टेम्पलेट बना होगा, उस पर कुछ टेस्ट लिखे होंगे, उसमें आपके फेफड़ों के टेस्ट होंगे, आपके और भी मल्टीपल टेस्ट होंगे, शुगर का टेस्ट होगा। तो जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं या जो जिनके डिवीजन लेवल के जिनके सिटीज़ हैं वो अपने जो THU है या जो जैसे हमारे फैसलाबाद में अलाइड अलाइड हॉस्पिटल है वहाँ चले जाएं। वहाँ पे जो कोई भी डॉक्टर अगर बैठा होगा उस दिन IPD में बैठा होगा
इमरजेंसी में बैठा होगा या फायर बर्न वाले में बैठा होगा, उसको बताएं कि आप जापान पढ़ना चाहते हैं। आप उसको मुंह से बताएं, वो बड़ी जापान के नाम से ही आपको बड़ी ऑनर मिल जाती है। तो आप उसको बताएं कि आपने जापान पढ़ना है, तो ये कुछ टेस्ट हैं आप करवाना चाहते हैं। तो आपको उसी वक्त वो टेस्ट जो है वो लिख के दे देगा, साइन मोर लगा के दे देगा। आप जाएं अपने टेस्ट के लिए अपने सैंपल जमा करवाएं ब्लड के, और अगले दिन आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। वो रिपोर्ट्स लेके आप उसी उसी अगर वो बैठा है डॉक्टर ठीक है, अगर वो नहीं बैठा तो उसको बताएं सिचुएशन की, कल यहाँ पे कोई और डॉक्टर बैठा था तो उन्होंने ये डॉक्टर लिख के दिए थे, क्योंकि उसकी मोर स्टैंप लगी होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा वो डॉक्टर भी। आपके वो सारे चेक करके जो आपने टेस्ट करवाए होंगे वो आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो फिल कर देगा, और वहाँ पे लिख देगा कि यू आर मेडिकली फिट फॉर स्टडी। तो जेनवन तरीका यही होता है। अब मेरे केस में क्या था कि मैंने ये सारा कुछ ऐसे ही करवाया था, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने सब कुछ करवाया, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ दूसरे थे जो सेलेक्ट हुए, उन्होंने ये वाले टेस्ट नहीं थे करवाए। अब उनको क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ साइन करवाए हुए थे, यूनिवर्सिटी को भी पता लग जाता है कि इन्होंने टेस्ट करवाए हैं कि नहीं, क्योंकि वो साथ कहते हैं रिपोर्ट्स अटैच करें। मैंने तो अपनी सारी रिपोर्ट्स साथ अटैच की थी, हट की ईसीजी वगैरह भी उसमें होती है। अब वो जिन्होंने नहीं थे करवाए उनको यूनिवर्सिटी ने यहाँ आके कह दिया कि आप अपने सारे जो टेस्ट हैं यहाँ करवाएं। यहाँ आके टेस्ट करवाना आपको बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ मेडिकल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो बेहतर है कि आप पाकिस्तान से टेस्ट करवा लें, ईजी भी होता है। इसके बाद एक प्लेज का डॉक्यूमेंट होता है। प्लेज का डॉक्यूमेंट वेरी सिंपल होता है कि उसमें लिखा होता है कि आप यहाँ पे आके कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, कोई दो नंबरी नहीं करेंगे, और आप सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे। तो एक पेज का होता है, आपने सिर्फ साइन करना होता है, और दिखने में तो एक पेज का होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इस पे साइन आपका प्रोफेसर भी साथ कर रहा होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले रहा होता है कि जो ये बंदा साइन कर रहा है मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे ही करेगा। तो इसका आपने ख्याल करना होता है। बाकी ट्रांसक्रिप्ट आपको पता है, आपका रिजल्ट कार्ड है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो मास्टर का रिजल्ट कार्ड या डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट आपकी होगी। अब मैं ट्रांसक्रिप्ट में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होगी। मैंने जो चीज़ नोट की है कि जिनका जो फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, मैंने नहीं देखा कि वो लोग सेलेक्ट हुए हैं जो अपने लास्ट ईयर में हैं। में से जिनकी अभी लास्ट या सेवन सेमेस्टर एट सेमेस्टर में है या सेवन सेमेस्टर में है, उन्होंने अप्लाई किया हो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो लोग नहीं आए यहाँ पे, या मैंने किसी की ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी। मोस्टली जो मेरे साथ लोग यूनिवर्सिटी में वो भी सिलेक्ट हुए हैं जिनका 6 6 साल का गैप भी था, या जो लोग जॉब कर रहे थे। जो अगर आपकी आपकी एजुकेशन में अगर कोई गैप है, या आप एजुकेशन आपने कंप्लीट की है 2018 में 19 में, और उसके बाद आपने कोई एजुकेशन नहीं की, आप किसी में कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करें। अगर आपकी कंपनी बहुत छोटी भी है, और लेकिन आपने एक है कि मैंने जनाब एक दिन का काम किया। मैंने आतिफ साहब के साथ जाके चिकपी के कुछ स्टेट्स का डाटा लिया। एक सिंपल सी बात है। एक ये कि मैंने वो डाटा क्यों लिया, उसकी क्यों ज़रूरत थी, और हमने जो डाटा लिया उसका क्या हमने किया। ये एक ये चीज़ है। ये दूसरी चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगेगा। आपने अपनी कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना होता है, इतना भी नहीं कि वो फेक लगने लगे, लेकिन कुछ चीज़ों को। तो ये ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट वही है, आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट चाहिए होगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी बंदा जापान आए वो 5 साल तक का पासपोर्ट अपना लेके आए, वैलिड हो उसका, क्योंकि जो लोग नेक्स्ट में मास्टर के लिए आते हैं यहाँ पे, उनको ये पीएचडी में प्रमोट कर देते हैं। उस स्कॉलरशिप पे आपको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन कि मुझे तो उन्होंने मेरे प्रोफेसर ने ये अभी से पूछ लिया कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर पीएचडी आफ्टर योर मास्टर यू विल बी अलाउड। तो यहाँ पे ये केस होता है। तो इसलिए फिर आप इन चक्करों से बचने के लिए अपना पासपोर्ट जो है उसको 5 6 साल से ज़्यादा के लिए आप उसको करवा के लेके आएं। वैसे तो यहाँ बैठ के भी आप करवा लेंगे, लेकिन अगर आपके पास 5 साल के लिए हो तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डीन का रिकमेंडेशन लेटर। अब डीन ने हमें कभी कभी पढ़ाया नहीं होता, फैकल्टी का डीन होता है, आप उसको जानते नहीं, वो आपको जानते नहीं, वो कैसे आपको रिकमेंडेशन लेटर देगा। ये बात सेम टू सेम जैसे मैंने आपको बताई है, ये इनको भी पता है, जब जब जापान वालों को भी पता है कि डीन जो है वो दूसरे मामला संभाल रहा होता है, उसमें क्लास कम ही ली होती है। यहाँ पे तो डीन जो है शायद क्लास लेता भी हो, एक दो दफ़ा मैंने नोट किया है डीन क्लास लेता है, लेकिन हमारे डीन कम ही क्लासेस लेते हैं। तो इनको भी पता होता है। बस इनको एक हल्की सी कंसर्ट चाहिए होती है डीन की तरफ से कि अगर ये बच्चा जापान में अप्लाई कर रहा है तो इसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो बातें ये लिख रहा है, या जो इसने ग्रेड यूनिवर्सिटी में लिए हैं, या इसकी जो अटेंडेंस थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, इसका कोई मसला नहीं। बस इतनी सी बात उसे चाहिए होती है। उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती इसने मेरे साथ रह के ये काम किया, इसने लैब में वो किया। इसमें उनको पता है कि डीन जो है वो और कैटेगरी का बंदा है, वो आपका एकेडमिक सुपरवाइजर या एकेडमिक के साथ नहीं कनेक्टेड। हाँ, अगर किसी का डीन वाकई ही उसका एकेडमिक सुपरवाइजर हो, जैसे कि पीबीजी का कोई प्रोफेसर है, वो डीन है, तो आप अगर उनकी सुपरविजन में मास्टर के लिए आपने कुछ किया हुआ है, फिर तो आप ये बातें लिखवाएं। अदरवाइज आपने सिर्फ यही लिखवाना होता है कि मेरे केस में ये था कि मैंने अपने रिकमेंडेशन लेटर में सिर्फ यही लिखवाया था कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और मैंने ये ग्रेड्स अचीव किए हैं, और इसके अलावा मैंने जो अटेंडेंस है वो मेरी 100% थी, और इसके अलावा मेरी जो जो इंग्लिश है वो अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सारी इंग्लिश में है। इसके अलावा मैंने अपने डीन के रिकमेंडेशन लेटर में कुछ नहीं था, उसमें साइन और मोर करवा के मैंने ऐसे फॉरवर्ड कर दिया। इसमें सिर्फ इतनी बातें लिखवानी होती हैं। अब डीन आपको रिकमेंडेशन देने पर राजी कैसे हो, दूसरा सवाल ये है। आपके पास जब प्रोफेसर का आ गया है, प्रोफेसर का रिस्पॉन्स आ गया है, आपने उससे चैट कर ली है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, उस पर लिखा भी हुआ है कि डीन का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकलवाएं, अपनी सीवी का, डिग्री का, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसक्रिप्ट का, और इसके अलावा जहाँ प्रोफेसर ने ये मेंशन किया है कि
आपको डीन का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वो भी गाइडलाइंस का भी। इवन कि मेरे केस में ये था कि मुझे उन्होंने कहा था कि पहले अपने चेयरमैन साहब से एक एप्लीकेशन को मार्क करवा के लेके आएं। जब मैं चेयरमैन साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप अपने सुपरवाइजर से करवा के लेके आए। तो फिर मैंने अपने सुपरवाइजर का रिकमेंडेशन लेटर साथ लगाया, चेयरमैन की एप्लीकेशन को मार्क करवा के साथ लगाया, तो इतना कोई पलंदा बन गया था डॉक्यूमेंट्स का, जो मैंने डीन को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जब। तो ताकि डीन के पास कोई भी वो ना हो कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें और उनको रिकमेंडेशन लेटर देना पड़े। और यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर आपने लिख के खुद नहीं लेके जाना होता, क्योंकि डीन की जो पोस्ट है वो बहुत बड़ी है। तो वो आपके उनके पास कोई ना कोई टेम्पलेट होगा जिसको वो मॉडिफाई करके आपके लिए कर देंगे। लेकिन आपने अपनी जो एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें आप लिखेंगे डियर सर आपको ये रिकमेंडेशन लेटर में ये चीज़ें चाहिए, आपने वो उस एप्लीकेशन में लिख देना है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर में ये चीज़ें चाहिए और आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो एप्लीकेशन के मुताबिक ही फिर आपका रिकमेंडेशन लेटर तैयार करेंगे। इसके बाद आ जाता है सुपरवाइजर का रिकमेंडेशन लेटर। अगर आप मास्टर में अगर आपने मास्टर किया है तो पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो जिस सुपरवाइजर ने आपको सुपरवाइज किया है उसका आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। अगर आप बैचलर्स किया है तो मास्टर के लिए आ रहे हैं, तो जिस सुपरवाइजर ने आपकी इंटर्नशिप सुपरवाइजर की है, इनर सुपरवाइजर ने, आपको उसका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। अगर आपको ये ना भी मिले, जिन्होंने आपकी इंटर्नशिप सुपरवाइजर की है, अगर ना भी मिले तो आप किसी और टीचर से भी ले सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। आपको सुपरवाइजर, अगर बैचलर के केस में अगर आपका वो सुपरवाइजर इंटर्नशिप का नहीं भी है, तब भी आप इजीली किसी और सुपरवाइजर से भी, आप और टीचर से भी ले सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी। इसके बाद एक होता है लेटर ऑफ एक्सीलेंस, लेटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। अगर आपने जब आपने अपना ये पूरा किया है टर्नओवर, उसमें आपकी टॉप 10% स्टूडेंट्स में आ रहे हैं, आपने कोई लैपटॉप विन किया है, आपने कोई स्कॉलरशिप विन की है, उसका भी एक आपके पास लेटर होना चाहिए। वो बेशक आप जाके अपने जो स्टाफ है जो स्कॉलरशिप को देखता है, जैसे आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आ जाती है या आपकी कोई और एक्सीलेंस स्कॉलरशिप आ जाती है, उसको आप मिल जाती है, तो आप उसका एक लेटर बनवा लें। अगर आपको यूनिवर्सिटी लेटर नहीं भी देती, तो मेरे केस में ये था कि मेरे पास जो सारी चीज़ें थी इसमें, मैंने वो लिख के सिर्फ अपने जो सुपरवाइजर थे, मेरे इंटर्नशिप के सुपरवाइजर थे, मैंने उनसे उनके साइन मोहर लगवाए हुए थे कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ आपने ये वाकई अचीव किया हुआ है। तो एक ही वो लेटर, वो एक पेज पे सिर्फ होता है, तो उसमें 3-4 लाइनें होती हैं कि आपने ये चीज़ें अचीव की हुई हैं। इसके बाद आप जो लोग इस वेबिनार में, जो लोग 7वें सेमेस्टर के हैं, 8वें सेमेस्टर के हैं, या जो इंटर्नशिप करेंगे, मैं उनको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अपनी जो इंटर्नशिप की रिपोर्ट लिखें वो थीसिस फॉर्म में लिखें। थीसिस फॉर्म में इंटर्नशिप की रिपोर्ट लिखना मुश्किल होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स आपको बहुत होंगे। क्योंकि मेरे केस में ये था कि जब मैं प्रोफेसर ने, जब मुझे जब मेरा यूनिवर्सिटी के साथ मेरा हुआ इंटरव्यू हुआ, अब प्रोफेसर ने मुझे कहा कि जो आपने पहले किया हुआ है उसकी स्लाइड भी यहाँ पे ऐड करें। मेरी जो इंटर्नशिप बनी हुई थी वो चैप्टर वाइज बनी हुई थी, हमने तो कोई ऐसे 3 माह का डाटा लेके कोई एनालिसिस लगाए नहीं थे हुए। तो मुझे फिर छठे सेमेस्टर में या 7वें सेमेस्टर में शायद हमने, मैम हिला को एक ग्रुप प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने उसका डाटा मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था, तो वो मैंने ग्राफ और फिगर्स मैंने ऐड करके वो काम चलाया। लेकिन अगर आपके पास इंटर्नशिप थीसिस बेस होगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस इंटर्नशिप को यूटिलाइज करना अपने इंटरव्यू में भी, और इनको भी जमा करवाना, क्योंकि ये आपकी थीसिस बेस इंटर्नशिप डिमांड करते हैं। अगर आपके पास ना हो तो ये कहते हैं कि रहने दें, उसके बगैर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। मेरे केस में मैंने उसके बगैर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। अगर आपके पास इंटर्नशिप रिपोर्ट थीसिस फॉर्म में है, चैप्टर फॉर्म है, तो उसकी एक पेज की आपको समरी भी सबमिट करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर ये पूरा ना पढ़ना चाहें तो समरी पढ़ के उसको कर लें। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से भी आपका काम चल जाता है। इट्स ना भी हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये प्रोफेसर पे भी कभी कभी डिपेंड करता है। कभी कभी प्रोफेसर आपको कह देते हैं कि आपके पास आइट्स होना चाहिए। मेरे साथ एक दोस्त थे वो एंटोमोलॉजी से, तो उनके प्रोफेसर ने उनको कह दिया था कि आइट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है मैथ्स की, लेकिन फिर भी मुझे आइट्स चाहिए। तो ये प्रोफेसर की अपनी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनकी, तो आपसे कहेंगे कि आपकी इंग्लिश भी अप टू द मार्क होनी चाहिए। उसको चेक करने के लिए वो आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर डिमांड कर, सॉरी, आइट्स वगैरह डिमांड कर सकते हैं। सीवी जो है वो ये डिमांड नहीं करते, क्योंकि ये जब आपने सारी चीज़ें आपने सबमिट करवा दी हैं, तो आपको सीवी, ये आपसे नहीं कहेंगे कि सीवी जमा करवाएं। लेकिन अगर फिर भी करवाना चाहता है तो आपने अच्छी सीवी जो है वो बना के सबमिट करवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जापान में पढ़ने के लिए आपको किसी किस्म की टेस्टेशन की जरूरत नहीं चाहिए, ना ही आपको मोफा से, ना ही आपको एचईसी से, ना ही आपको अपने बोर्ड से। इन चीज़ों से मैक्स में पढ़ने के लिए, मैं सॉरी जापान में मैंने कह दिया, मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ने के लिए जापान में आपको किसी किस्म की टेस्टेशन की जरूरत नहीं चाहिए, ना ही आपको मोफा की, ना ही आपको अपने बोर्ड की, ना ही किसी और चीज़ की। आप सिंपल अपने डॉक्यूमेंट जो आपको यूनिवर्सिटी में मिले हैं वो भी सबमिट करवा दें तो आपका काम चल जाता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो उसको टेस्टेशन करवा के लेके आए, एचईसी से भी, मोफा से भी, और अपने बोर्ड से भी, और हर जगह से। क्योंकि मे भी अगर कोई मास्टर करने के लिए यहाँ आ रहा है, तो पीएचडी करने के लिए वो अमेरिका या यूएसए जाना चाहे, तो इट विल बी ईजी कि उसको वो दोबारा डॉक्यूमेंट अपने पाकिस्तान में भेजने पड़े। तो इसलिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन करवा के लेके आए। लेकिन अगर नहीं भी हो सके किसी वजह से, तो आप अप्लाई ज़रूर करें, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये स्कॉलरशिप आपको बेनिफिट क्या देती है। इसका जो मंथली स्टाइपेंड है, आपको यहाँ पे जो करेंसी है वो येन के नाम से चलती है, वाई वाई येन के नाम से। तो 1,44,000 ये आपको मंथली स्टाइपेंड देते हैं यहाँ रहने का, जो पाकिस्तान की करेंसी में 2,85,000 के करीब बन जाता है। उसमें अपनी लिविंग आपने खुद मैनेज करनी है, अपनी डॉर्मेट्री का बिल वगैरह आपने खुद देना है, और खाने पीने का आपने खुद मैनेज करना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में हैं और आपकी जो रिसर्च है वो बड़ी स्पेसिफिक है, तो ये आपसे 2,000 से 3,000 येन आपको ज़्यादा भी दे देते हैं पर मंथ, तो ये एक आपकी मिल जाती है।
इसके अलावा आपको प्रायोरिटी बेस वीज़ा मिलता है कि आपको जो वीज़ा मिलता है मैक्स के केस में, मैक्स के में प्रायोरिटी बेस वीज़ा आपको मिलता है कि अगर आप आज जब आपका एम्बेसी जो आपकी जापानीज गवर्नमेंट होती है वो एक शीट आपकी जो एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान उसको फॉरवर्ड कर देती है कि ये बच्चे मैक्स में सेलेक्ट हुए हैं, इनका वीज़ा इनको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वो आपको खुद ही बताते हैं कि अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आ जाएं। अगर आप आज अप्लाई करके आए हैं तो सिर्फ 4 से 5 दिनों में आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। आपको खुद जाके लेके आना पड़ता है, वो कोरियर नहीं करवाते, लेकिन 4 से 5 यही ड्यूरेशन है। उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं होती। और सबसे बढ़ के आपको राउंड ट्रिप की टिकट्स मिलती हैं, या आपको पाकिस्तान से जापान आने का और वापस जापान से पाकिस्तान जाने की जो टिकट्स हैं वो मैक्स खुद उस पे करती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और आपको यहाँ पे अगर कोई प्राइवेटली खुद पे करके यहाँ पे आना चाहता है तो उसको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिफरेंट तरह का होता है। कभी कभी आपके केस में, मैक्स के केस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक होती है प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर कोई प्राइवेटली फंडेड स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहता है अपने खर्चे पे, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो एक तरह का रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो उसकी फ़ी भी होती है। लेकिन मैक्स के केस में आपकी कोई एग्जामिनेशन की फ़ी नहीं होती एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और आपकी यहाँ पे पढ़ने की भी कोई फ़ी नहीं होती, आपकी फ़ी वेव कर दी जाती है। तो ये स्कॉलरशिप के कुछ फ़ायदे हैं। हाँ, इसके अलावा ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दे दी हैं। आपको मैक्स की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, आप उससे जाकर डिटेल लेना चाहें तो आप इस लिंक से आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान है, उनकी वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है। आप इसे आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको मैक्स के रिलेटेड, बेशक वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है या वो ट्रैक है दूसरा एम्बेसी ट्रैक है, उसके रिलेटेड डिटेल चाहिए तो ये मैक्सीपीडिया के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे ऑल अबाउट मैक्स आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और अगर आपको प्रो वाली टिप्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइए। ट्रांजीन्स जबान के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे एक बंदे की वेबसाइट है, उसने जो अपना पूरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मैक्स स्कॉलरशिप का, खुद भी उसने मैक्स स्कॉलरशिप अचीव की, तो उसने सारा यहाँ पे पुट किया हुआ है। आपको हर एक चीज़ पे बड़ी डिटेल से गाइडलाइंस यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप इन साइट्स को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। सो ये था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और मुझे पता है मेरी स्पीड भी बोलने की तेज़ होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन के बाद रह भी जाए, मुझे ईमेल भी कर दें, और आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे लिंकिंग पे चले जाइएगा, मुझे वहाँ भी पोस्ट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपकी कोई क्वेरी वैसे तो नहीं बची होगी, लेकिन अगर फिर भी बची है तो हाउस इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। जिनका क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर दें, ताकि वन बाय वन उनको मैं खुद ही अनम्यूट कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। अहमद, ओके। अहमद नवाज, आपका क्वेश्चन है। आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच। एक तो आपने बहुत अच्छी जो है हमें एग्जाम्पल्स दे के समझाया है। और दूसरा सर, मैंने ये पता करना था कि मैंने बीएस फिजिक्स के बाद एमए पॉलिटिकल साइंस किया था। और चूंकि वो मैंने प्राइवेट किया है तो वो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो मुझे नहीं जानते। तो इस केस के अंदर मुझे रेफरेंस लेटर जो बनवाना है वो किस टाइप का मतलब बनवाना पड़ेगा, और क्या वो मींस वो जानते नहीं है तो ज्यादातर कहते हैं कि भाई हम बना के नहीं देते। तो इस केस में मैं क्या करूं? और दूसरा, आपने जो डीन का कहा है एक्सेप्ट सॉरी रेफरेंस लेटर, तो वो भी मतलब यही कहते हैं कि नहीं भाई हम आपको जानती नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं, आप ना जी जी हमसे पढ़े हैं, आप किसी और से बनवा लें। तो इस केस में जी क्या जी। किया जाए फिर? और सेकंड सर क्वेश्चन ये है कि चूंकि थर्ड। मैंने बीएस फिजिक्स किया था वो 16 साल की है डिग्री, और जो एमए पॉलिटिकल साइंस है वो भी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 16 साल का ही होता है। तो क्या ये बाहर के ममालिक के अंदर एज अ एमफिल काउंट होगी, या मुझे दोबारा से मतलब एमफिल के अंदर एनरोल होना पड़ेगा? अच्छा। मतलब उस बेस पे क्या मैं पीएचडी में अप्लाई कर सकता हूँ? ओके, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। ओके, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। बाकी जिन लोगों के क्वेश्चन है वो अपने चैट में पुट कर दें। अब आप देखेंगे आपने बीएस फिजिक्स भी किया हुआ है और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। फिजिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का मुझे तो कनेक्शन नजर नहीं आता, और केस भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। बेहतर यही सर है कि एक्चुअली बाय डिफॉल्ट मैं पहुंच गया था बीएस फिजिक्स में वालदेन के प्रेशर पे, फिर बाद में मैंने कहा नहीं मैंने पॉलिटिकल साइंस करना है, तो पहले ही मैं इसी फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन बाद में फिर मैंने प्राइवेट में पॉलिटिकल साइंस कर लिया कि चलें ठीक है अब खुद कुछ कर लेते
ओके 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 ओके। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बीएस की जो डिग्री है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसकी बेस पे फिजिक्स में अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी जो आपके रिकमेंडेशन लेटर और लेने का फ़ायदा है वो आपको जो वहाँ से लेने का फ़ायदा तब होना अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आगे अप्लाई करें। आप बल्कि सोशल साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे साथ जो लोग हैं सेलेक्ट हुए वो सोशल साइंस से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि क्या वही आपको यूनिवर्सिटी से पूछना होगा मिल करके कि क्या वो आपकी बैचलर्स की डिग्री को आपकी बेस एक्सेप्ट करेंगे पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में या पीएचडी किसी भी फील्ड में करने के लिए। अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं तो ये बीएस के लिए बीएस के बाद अगर बीएस की बेस पे पीएच मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिजिक्स की बेस पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मास्टर के लिए अप्लाई कर दें। और ये जो आपने डिग्री की है इसको आप समझ लें कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, और मास्टर करने के लिए यहाँ आ जाएं, उसके बाद पीएचडी परसू कर लें। सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है। और बाकी जो रही बात रिकमेंडेशन लेटर लेने की, अगर आपने डिग्री बीएस की जो की है वो किसी यूनिवर्सिटी से की है तो फिजिकली की है, तो वो आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट शो करवा के आपको वहाँ से आपके प्रोफेसर या कोई टीचर आपको कोई ना कोई रिकमेंडेशन लेटर दे देगा। अगर नहीं देता तो आप उनको रिक्वेस्ट करें। बेहतर ये होता है कि रिटर्न फॉर्म में कोई एप्लीकेशन ले जाएं तो वो ज़्यादा फॉर्मल वे बन जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके। तो जिनके चैट में क्वेश्चन हैं वो ले लेता हूँ। यस यस, आपका कोई भी बैकग्राउंड है साइंस की फील्ड में, आप डीबीएम के हैं या कोई किसी भी फील्ड के हैं, तो आप यहाँ पे मास्टर्स करने या पीएचडी करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे एनिमल बेस्ड रिसर्च भी है। सीजीपीए का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करते हैं तो आपका सीजीपीए नहीं, आपका जो एग्रीगेट है वो 80% होना चाहिए मार्क्स का एम्बेसी ट्रैक में। यूनिवर्सिटी ट्रैक में अगर आपका 75 से 80% भी दरमियान में है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई, काइंडली दोबारा। सॉरी, आप लाउड नहीं थे यार, चेक करें अपनी ये जो है ना सीजीपीए का क्राइटेरिया। वो अगर आपकी रिसर्च कम भी हो और रिसर्च अच्छी भी हो, सीजीपीए कम भी हो, तब भी आपका क्राइटेरिया यही है बेसिकली कि आपको 80% रिक्वायर है मार्क्स। डू यू हैव एनफ टाइम फॉर स्टार्टिंग ईमेल? अच्छा यार, ये सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है। हम इसको ट्राई कर रहे थे कि जल्दी कर लें ताकि जो लोग एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोफेसर को ईमेल करना चाहते हैं, तो वो कर लें। अभी भी 24 अक्टूबर है, नवंबर आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी भी आप प्रोफेसर को ईमेल करना शुरू कर दें, तो आपको कुछ ना कुछ फ्रूट्स मिल जाएंगे इसके। अब्दुल्ला डायरेक्ट भाई, रिकमेंडेशन। क्वेश्चन जी जी, आंसर सेशन क्वेश्चंस आए हैं, आप उधर से लेंगे क्वेश्चंस? जिन्होंने हैंड रेस किए हैं। नहीं, ये अ, ऊपर आए हैं ओ सेशंस आंसर ओके सेशन। ओके ओके, क्वेश्चन आंसर सेशन। ओह ओके, लेट मी चेक। ओके, इधर इन्होंने चैट में भी पूछे हुए हैं, तो मैं ये पहले ये कवर कर दूं। इनके डायरेक्टर का रिकमेंडेशन लेटर भी ओके है, आप ले लें, वो डीन के बराबर ही बन जाएगा। डॉक्यूमेंट दैट विल बी सेंट टू द प्रोफेसर इज जीनियस और इट कैन बी कलर्ड कॉपी। हाँ, मेरे केस में ये था कि मुझे उन्होंने कहा था अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करें, तो जब मैंने उन्हें कहा था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करना सम हो डेंजरस, कि मैं अगर उनको गलती से भी इधर उधर कर दूं तो फिर, या कोई कोरियर कंपनी कर दे तो फिर मैं दोबारा नहीं बना सकता, इसलिए मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो उन्होंने कहा था आप कलर कापीज करवा के यूनिवर्सिटी से दोबारा मार्क करवा के भेज दें। आप कलर कापीज करवाएं, यूनिवर्सिटी से दोबारा मार्क करवाएं, बट उसकी उसको कहते हैं टेस्टेशन ही होती है यूनिवर्सिटी की, वो करवा के आप दोबारा उनको भेज दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। हाँ, आपका अगर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका सुपरवाइजर है आपका है, तो उसका भी रिकमेंडेशन लेटर चल जाएगा। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे फुल प्रोफेसर 21वें 22वें ग्रेड का प्रोफेसर अपना पानी पीने से लेके अपना सारा काम खुद करता है। इवन के लेबॉर्ट्री की सफाई भी वो खुद ही करता है। एक दिन मुख्तस है, उसमें स्टूडेंट्स ने और प्रोफेसर ने मिलकर खुद सफाई करनी होती है। इनको इस चीज़ से मैटर ही नहीं है कि कोई सुपरवाइजर जो आपको स्पोर्ट जो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे रहा है वो एसोसिएट है क्या, इनके लिए हर बंदा इक्वल है। आप अपना रिकमेंडेशन लेटर असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ले लें, बस उसकी जो प्रोफाइल है सर्च के लिहाज से वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि अगर सर्च गेट पे जाकर उनका नाम सर्च किया जाए तो वो अ, जो है वो कुछ रिसर्च शो करे। पीएचडी के लिए इंटर्नशिप रिपोर्ट आपकी जो है वो तो आपका मास्टर्स का थीसिस होगा। जी, एम्बेसी टेक में रिटन टेस्ट भी होता है। रिटन टेस्ट में सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक की होती है और कुछ जापानी लैंग्वेज का नॉलेज चेक होता है, लेकिन वो जापानी लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास नहीं भी होगा, उनको भी पता है, वो इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू, लेकिन आपका इंग्लिश का टेस्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं, ये आपको यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऊपर मेन्यू होता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे, ऊपर एक मेन्यू में ऑप्शन आ रहे होंगे, एडमिशन,
अबाउट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफर स्कॉलरशिप करती है उसमें एक मैक्स का फोल्डर भी बना होगा, उससे आपको पता लगेगा कि इस यूनिवर्सिटी में मैक्स स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है या नहीं हो रही। पासपोर्ट आपको पहले चाहिए, एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले तो बेहतर है कि आप प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले ही अपना जो है पासपोर्ट आपके पास हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोफेसर ही देगा, आपने वो सबमिट करवाना है, लेकिन एम्बेसी के केस में आपको एम्बेसी की वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे। एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आप एक्सेप्टेंस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपने अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ये ना हो कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें और मैक्स का जो दर है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आपने अप्लाई एक यूनिवर्सिटी में कर दिया, दूसरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते, बेशक आप प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन में थे, आपने प्रोफेसर को बता देना है कि आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है, वो इस चीज़ का कोई बुरा नहीं मनाएंगे। 2.98 CGPA बहुत थोड़ी है, ये आपको दोनों ट्रैक पे सपोर्ट नहीं करेगी। जी मैंने आपको इस मीटिंग में पहले बता दिया कि एम्बेसी की यूनिवर्सिटी ट्रैक के केस में आपको प्रोफेसर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैपनीज अगर आपने सीवी जापान में भेजनी है तो आप यूरोपास की बजाय सिंपल फॉर्मेट यूज़ करें। Is there more edge of achieving max scholarship? Yes, अगर आपके पास जापानीज लैंग्वेज का N5 है या कोई भी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो इट विल सपोर्ट योर एप्लीकेशन। सर एग्रीकल्चर में तो 80% बनता ही 4/4 है मोस्टली। नहीं, मेरी CGPA 3.83 थी बैचलर्स की और मेरा 81% थे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी CGPA 4/4 है, हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी CGPA 4/4 होती है लेकिन आपका जो एग्रीगेट है वो सिर्फ 83% 80% बन रहा होता है, तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी 4/4 CGPA चाहिए होगी 80% का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। मेरी 8.3 थी, सॉरी 8.3 नहीं 3.83 थी, तो मेरे केस में मेरे 81 पॉइंट समथिंग मेरे एग्रीगेट बन रहा था। जी जी, अगर आपने एम्बेसी यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना है तो आप अभी से ईमेल प्रोफेसर को करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर को ईमेल करनी है तो स्कॉलरशिप का नाम, हाँ हाँ आपको स्कॉलरशिप का नाम लिखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप मैक्स यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू आ रहे हैं, ताकि प्रोफेसर को पता हो कि उन्हें फंड खुद नहीं करना। ओके नाउ गो टू क्वेश्चन आंसर। सर यूनिवर्सिटी ट्रैक में नंबर का टाइम है, वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू स्टार्ट मेलिंग एंड देन गेट आप ये सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको प्रोफेसर के थ्रू अभी भी एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जो मेरे साथ 90 लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिलेक्ट तो हुए हैं और उन्होंने नवंबर में मेल की थी। हाँ, प्रोफेसर को ईमेल करते वक्त आप सिर्फ अपनी CV अटैच करें, आप अपने अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो अटैच करें और डिग्री अटैच करें। रिसर्च प्रपोजल आपको बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता प्रोफेसर किस डोमेन में काम कर रहा है, तो क्या आप हर प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए हर दफ़ा रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे? तो आप पहले सिर्फ उनको अपनी CV अपना जो आपका ईमेल बॉडी लिख के ईमेल में इंटरेस्ट शो करके अपनी CV और साथ आप अपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अटैच करें। अगर आपके पास डिग्री है, नहीं है तो आप उसके साथ अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो अटैच कर दें, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जापान में जापान में हर फील्ड में स्कॉलरशिप आती हैं। एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी स्कॉलरशिप आती है, मैकेट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में, CS में, हर फील्ड में यहाँ पे स्कॉलरशिप आती हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है आज, ये सिर्फ मैक्स के बारे में बताया है। यहाँ पे और भी स्कॉलरशिप है, जीका के नाम से, जाइका के नाम से स्कॉलरशिप है, जैसू के नाम से स्कॉलरशिप है, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो इनकी हाईली पेइंग और सबसे अच्छी स्कॉलरशिप है वो मैक्स ही है। सर टाइम ट्राई कर सकते हैं हम, क्या 7 सेमेस्टर PPG स्टूडेंट। मैंने जैसे पहले बताया कि जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे उनमें से ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर आप अब अप्लाई करना स्टार्ट भी करते हैं, लेट्स सपोज 7 सेमेस्टर में है, तो इनके आपको कहते हैं कि अपनी डिग्री फुल सबमिट करवाएं तब आपका इशू बन जाएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डिग्री कंप्लीट होना ज़्यादा बेटर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एंड लिंक्डइन फॉर गेटिंग प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप, एंड फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप फॉर गेटिंग कंसोर्शियम बेस्ड एंड यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप। तो सब सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उन पे स्कॉलरशिप के कुछ पेजेस को लाइक कर लें, ताकि और उनको कुछ जो अच्छे पेज हैं उनको आप फेवरेट में ले आएं, ताकि उनकी हर पोस्ट आपको मिलती रहे। जापान पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है, तो आप जब भी ईमेल करें बेटर यही है कि आप जापान के टाइम 8-9 के दरमियान में ईमेल करें, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर सबसे पहले आगे अपना ईमेल चेक करते हैं। और इनकी सारी जापान में सारी की सारी कम्युनिकेशन ईमेल पे है। व्हाट्सएप लाइन इनके हैं, लेकिन ये ज़्यादा ईमेल पे कम्युनिकेशन करते हैं, तो ईमेल Gmail को देखना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप
ईमेल इनको सुबह के वक्त करें, जब यहाँ पे जब जापान में 8 से 9 बज रहे होंगे। बस ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 70% अगर आपके एग्रीगेट है, 70% तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क चांस ले सकते हैं, अगर आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस दे दे और यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर ले तो इट वुड बी समहाउ बेनिफिशियल। यस, एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, हकाइदो में है, नगोया में है, टोरी में है। इस तरह कुछ प्रोफेक्चर्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जब मैं सर्च कर रहा था तो 18वीं यूनिवर्सिटी पे आके मुझे ये प्रोसीजर शुरू हो गया था। 18 यूनिवर्सिटीज़ में पहले मैंने सारी डिटेल चेक की थी, कुछ में मुझे स्कॉलरशिप की डिटेल मिलती थी, कुछ में नहीं मिलती थी। अब 18 को तो मैंने खुद विजिट किया, अब 18 से आगे जो रहती थी उनको आप खुद विजिट कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, 18 के अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी हैं। Specific university for next or overall university except for next. Is there some specific universities for next? No, there are some specific universities, not overall. All the universities are not offering next. Only specific universities जिनको मैक्स ने अलाउ किया है कि वो फलाने प्रोग्राम में इतने बच्चे ले सकते हैं, तो ये आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करना पड़ेगा। 70% या 72% एग्रीगेट के साथ आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी ट्रैक में। जी, अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। 3.56 सीजीपीए आपकी ठीक है, लेकिन चेक कर लेंगे आपके मार्क्स कितने बनते हैं एग्रीगेट। अगर एग्रीगेट आपका 70 प्लस बन जाता है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर दें। 3.31 80% in BSc and second year job experience, 2 years of my FYP in search transfer अप्लाई कर लें। आपका एग्रीगेट अगर 81% है, सीजीपीए 3.3 भी हैं, तो मेरे साथ कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनकी सीजीपीए 3.4 या 3.5 भी थी, तो उनका भी एग्रीगेट 80 से ऊपर था, तो वो सेलेक्ट हुए हैं, तो आप कर लें अप्लाई। डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अप्लाई ज़रूर करें। ओके, आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन कि आप कोई टेम्पलेट शेयर कर दें ईमेल का या कोई इस तरह। यार, टेम्पलेट शेयर करने का ना फ़ायदा कोई नहीं होता। आपको मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट दिखाने को, तो मैं आपको टेम्पलेट सारे दिखा दूँ, आप सारे उसके स्क्रीनशॉट ले लें और उसको यूज़ करें। मुझे जो शक पड़ती है, जितना इनका सिस्टम तेज़ है, आप जो भी डॉक्यूमेंट इनको सबमिट करवाएंगे वो इनके सिस्टम में सेव हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अपने इस लैपटॉप को, ये जो मैं जिस लैपटॉप में बैठा हुआ हूँ, इसकी विंडो क्रैक्ड है। पाकिस्तान में हम क्रैक विंडो यूज़ करते हैं। जब मैंने इसको वाईफाई पे कनेक्ट किया तो उन्होंने मुझे वार्न कर दिया कि आप ऐसा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिसकी विंडो सर्टिफाइड नहीं है, तो आप हमारे वाईफाई पे कनेक्ट ना करें। इनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है, तो जब आप इनको कोई भी डाटा सबमिट करवाते हैं इनके सिस्टम में आता है। हाँ, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि आपने जो लिखना है, ईमेल की बॉडी हो वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आप प्रोफेसर को ग्रीटिंग्स के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। आपने बताएं कि आपने किया क्या है और आप एक्सपर्टीज आपके पास क्या है। पैराग्राफ में 3 से 5 लाइनों का ये पैराग्राफ होना चाहिए कि आपने आपने किया क्या है, आप कौन है, किया क्या है, और आप ये ईमेल क्यों लिख रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए कि आपकी प्रोफेसर के साथ, आप प्रोफेसर की जो रिसर्च है वो किस पे बेस करती है, और आप प्रोफेसर की किस रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, किस एक पार्ट में इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद आपने ये उनको बताना है कि अगला पैराग्राफ शुरू करके ये 3 से 5 लाइनों के पैराग्राफ होने चाहिए। जितना आप कंसाइज रहेंगे उतना फ़ायदा प्रोफेसर के लिए भी इजी होगा। अगले पैराग्राफ में आप ये बताएं कि आप प्रोफेसर के पास अगर सर्च करने के लिए आना चाहते हैं तो किस किस यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट से, किस फैकल्टी से, किस ग्रेजुएट स्कूल से, किस स्कॉलरशिप के थ्रू आप प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं, ताकि उनको क्लियर हो कि ये बंदा इस ट्रैक से होते हुए मेरे पास आ रहा है, ना कि उसको भी ना पता लगे कि आप किस स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के थ्रू आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्लियर करना प्रोफेसर को पहले बहुत ज़रूरी है। 3.38 गुड फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप। अगर आपकी 70% से ऊपर, 75% से ऊपर बन जाती है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में जरूर अप्लाई कर लें। अगर आपकी 3.38 सीजीपीए है। सर, स्टडी प्लान के बारे में भी गाइड करें, कैसा होना चाहिए। यहाँ पे स्टडी प्लान नहीं होता, यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल होता है। शायद आप रिसर्च प्रपोजल का भी पूछ रहे हैं। इनका ना एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है रिसर्च प्रपोजल का, तो उसमें इन्होंने चीज़ें बताई होती हैं कि आपने ये चीज़ें अपने प्रपोजल के बारे में मेंशन करनी है, तो वो ईजी होता है। बस आपको प्रपोजल होना चाहिए। मेरे इस बात एक पाकिस्तान से लड़का इस दफ़ा आया है जिसके पास, जिसकी मैक्स स्कॉलरशिप तो नहीं है, लेकिन उसके प्रोफेसर ने उसको कहा, उसको अपने पीएचडी करने के लिए कि वो आया है, उसको अपने फंड से स्कॉलरशिप दी हुई है, उसकी फी यूनिवर्सिटी की वेव है, और उसको प्रोफेसर खुद स्टाइपेंड दे रहा है। तो एक उस केस है, लेकिन इस केस के लिए आपको 80% से नीचे वाला क्राइटेरिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो डायरेक्टली भी प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लोग हैं, इंजीनियरिंग के लोग हैं यार। रिमोट सेंसिंग का अब मुझे याद नहीं है कोई बंदा पाकिस्तान से मेरी यूनिवर्सिटी में है। ओवरऑल जो 90 लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें तो इंजीनियरिंग के, टेली कम्युनिकेशन के भी लोग हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और ये तो जापान तो है ही, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप ये वाले फील्ड वाले लोग ज़रूर अप्लाई करें। 3.72 इंग्लिश गुड, क्या आइल्स का सर्टिफिकेट को अटैच करने से
पड़ता है। आप अगर राइट्स को अटैच कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। ओके, जिनका जिनका अब जिनका क्वेश्चन के मैंने आंसर कर दिए हैं वो काइंडली अपना हैंड डाउन कर लें, जिनके क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। लेकिन जिसका क्वेश्चन रह गया है वो सिर्फ अपने हैंड को अप रखे, क्योंकि मोस्टली मैंने क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। ओके, खिरात, अब्बास, मोहम्मद सुहेल और अनम, अगर आपके क्वेश्चन भी रहते हैं तो अपना हैंड अप रखें, वरना आप अपना हैंड डाउन कर लें। ओके, मोहम्मद सुहेल, आप क्वेश्चन करें। आप अपने आपको पहले अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। इससे पहले मेरी बात बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री कोयटा के एक एफिलिएटेड एग्रीकल्चर कॉलेज से। ओके। तो इस वक्त मेरा एमएससी का थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। अब अगर मैं दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो क्या मुझे उसके लिए अपने जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वगैरह, ये मुझे यहाँ के मौजूदा प्रोफेसर से लेने चाहिए या नहीं? मौजूदा प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन लेटर देगा ही नहीं, वो कहेगा कि आपको, अगर तो आपने पीएचडी करने के लिए जाना है फिर तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने मास्टर्स करना है दोबारा, तो आपको मास्टर्स के लिए रिकमेंडेशन लेटर उन्हीं प्रोफेसर से लेने पड़ेंगे जिस एफिलिएटेड कॉलेज से आपने डिग्री की है। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन असल में इशू ये है कि वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनका वो ना प्रोफाइल इतनी अच्छी है और ना कॉलेज की रेपुटेशन इतनी अच्छी कौन सा कॉलेज, कौन सा एफिलिएटेड किसके साथ था वो कॉलेज, किस डिग्री, किस यूनिवर्सिटी के साथ? है। तो बुरिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट बलूचिस्तान? है। जी जी। नहीं नहीं, आप मैटर नहीं करता, आपको जिस यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया है आप उसके प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर दें, वो कोई इतना इशू नहीं है। मोस्टली ये जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी आपके प्रोफेसर की प्रोफाइल खोल के चेक करे, उसको आपकी प्रोफाइल से मतलब है। अगर आपके प्रोफेसर ने आपको रिकमेंड किया है तो उनको भी पता है, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप अपने उस कॉलेज से ले सकते हैं जिससे आपने डिग्री की ठीक। थैंक यू। है। ओके, खिरात, आप अपने आप को करें अनम्यूट, खिरात अब्बास। खिरात, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल? वालेकुम सलाम। ठीक। जी आपके अब्दुल्ला भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस के आपने बहुत ना इसको प्रिसाइजली और कवर अप करने की कोशिश की है, माशाल्लाह। सो मच। और सेकंडली मैं ये अब्दुल्ला भाई पूछना चाह रहा था कि 3.3 जो है सीजीपीए वो कितनी इफेक्टिव या कंप्लाई कर रही है इसके साथ, स्कॉलरशिप के साथ? आपको ये और जी जी, अच्छा, क्वेश्चन कर लें आप। और जो अगर इस पे वहाँ पे हम एग्रीकल्चर डेस्टिनेशन को चूज करते हैं एज अ सेल्फ फाइनेंस पे, तो ये अब कितना इफेक्टिव समझते हैं कि वहाँ पे पहुँच के हम उसको कितना स्कॉलरशिप को ग्रैब कर सकते हैं हम, अगर फिजिकली वहाँ पेयर हो जाएं तो? अच्छा, यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तो हम 4 अभी आए हैं। इससे पहले एक पाकिस्तानी था पीएचडी के लिए, वो भी अपनी जो है वो प्रोफेसर की फंडिंग पे था। इससे पहले पाकिस्तानी कोई नहीं था, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बांग्लादेशी जितने भी हैं ना वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं अपनी प्राइवेट फंडिंग के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं। आपको पार्ट टाइम जॉब में आपको 1 घंटे का पाकिस्तानी 2,000 यहाँ मिल जाता है। तो आप यूनिवर्सिटी, और आप यूनिवर्सिटी को अगर रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ आके कि आपकी इनकम थोड़ी है, आपकी फीस वो वेव कर दे, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे फीस वेव भी कर देती है, बस आपको अपनी अकोमोडेशन को मैनेज करना होता है। लेकिन आपको प्राइवेटली फंडेड होने के लिए आपको पहले प्रोफेसर को अप्रोच करना ही पड़ेगा। आप प्रोफेसर को कहेंगे कि आप उनकी रिसर्च के साथ इंटरेस्टेड हैं, आप आना चाहते हैं, और फी आप मैनेज कर लेंगे वर्क करके, या अगर प्रोफेसर वेव करवा दे तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको प्राइवेटली भी फंड करनी पड़ जाती है किसी को, तो वो यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे आके वो जॉब भी कर सकता है और यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट भी कर सकता है। और अगर प्रोफेसर सपोर्ट करेगा तो वो किसी न किसी स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ आके भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। लेकिन वो मैक्स की तरह की लग्जरीज तो प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आपकी फ़ी और इधर उधर कवर कर लेगी चीज़। और जो आपकी 3.3 सीजीपी वाला क्वेश्चन है, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपना एग्रीगेट देख लें। अगर तो एग्रीगेट 75% से कम है तो आप बस यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी अप्लाई ना करें, डायरेक्ट प्रोफेसर को अप्रोच करें अदर देन मैक्स स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 80% से ऊपर है, तो 70%, 75% से ऊपर है, तो आप यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करें नेक्स्ट के जी, लिए। और अब्दुल्ला भाई ये दूसरा लॉन्ग टर्म एज जापान को एग्रीकल्चरल डेस्टिनेशन आप कैसे देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए? यार, मेरा अभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं जापान में, इवन कि मैं तो अपने आप को भी अहल ही नहीं समझता कि मैं इस वेबिनार को भी करूं, क्योंकि मेरा अभी कितना एक्सपीरियंस हुआ है, जस्ट फ्यू डेज, और मुझे सिर्फ एप्लीकेशन गाइडलाइन के अलावा मुझे क्या पता है, अभी कुछ भी नहीं। तो जब मेरा कोई यहाँ पे जी कोई मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा या पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मुझे कोई समझ आएगी कि यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है और लॉन्ग टर्म में जापान एग्रीकल्चर में किधर जा रहा है, फिर तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। लेकिन अभी मैं अनेबल हूँ। बस मुझे इतना पता है कि जो मेरे यहाँ पे मेरी परफेक्चर में एग्रीकल्चर होती है, वीट भी होती है, राइस पे भी होती है, और बड़े पैमाने पे होती है।
जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला भाई, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अनम आपका क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस से और मेरा CGPA 3.31 जो कि 81% बनता है, ठीक है। और मैंने IELTS दिया हुआ है, उसमें मेरा 7.5 है और मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है वेब डेवलपर का। और मैंने अपना FYP जो है रिसर्च बेस नहीं किया था, मेरा FYP जो था मैंने एक वेबसाइट ही बनाई थी उस वक़्त, और मैंने 2022 में अपना ये किया है बैचलर। तो मैं इस अप्लाई करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी प्राइवेट थी, UMT थी, और मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या एक लाइक HEC से ही ये है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये क्या मैटर करता है कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इतनी प्रेफरेंस ना दें एज़ कम्पेयर टू लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हों। और ये आप प्रोफाइल के लिहाज से कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ स्कॉलरशिप के लिए कि नहीं? आपकी जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी प्राइवेट है जिसमें आप अप्लाई करना चाहती हैं, वो जापान की यूनिवर्सिटी प्राइवेट है? नहीं, मेरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। नहीं, इस चीज़ का कोई मसला नहीं है कि कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी के MOU साइन होते हैं। मेरे केस में ये था कि जब मैं अप्लाई करने लगा था तो उन्होंने साफ लिखा हुआ था कि मैक्स में वो बंदा अप्लाई करे जिसकी यूनिवर्सिटी के साथ हमारे साथ MOU साइन हुआ है। तो लेकिन प्रोफेसर मुझे रिस्पॉन्स को दे चुके थे, तो मैंने उनको ईमेल की थी IID को कि क्या ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी का MOU साइन हो, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का MOU आपके साथ साइन नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप अप्लाई कर लें, तो ये एक इशू नहीं है अगर प्राइवेटली फंडेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़े हैं। बाकी आपकी प्रोफाइल ठीक है, 80% के क्राइटेरिया को आप पूरा करें तो आप अप्लाई कर लें, कोई इशू नहीं। ठीक है। और सर ये रिसर्च बेस्ड मेरा थीसिस नहीं, मतलब इस तरह नहीं था कोई मेरा, इशू ये नहीं। लाइक कोई मसला आप नहीं। आपको बनानी आती है ना वेबसाइट, कोई इशू नहीं। आप अपनी जी, वेबसाइट पर करें और बताएं आपने कैसे बनाई थी, कोई मसला नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह सर। ठीक। सलमान अहमद, आप अपना क्वेश्चन कर लें। किसी ने पहले भी हैंड रेज किया था, वो मुझसे लोअर हैंड हो गया, वो अपना दोबारा हैंड रेज कर ले। हाँ, सलमान आप अपना क्वेश्चन करें। सलमान क्वेश्चन करें। ओके, रेहान आप अपना क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है जी। जी सर, शायद आपने मेरा आंसर कर ही चुके हूँ, वो बीच में मेरा इंटरनेट चला गया था तो मैंने दोबारा ज्वाइन इन किया है। तो सर मेरा ना, मैंने एमफिल किया हुआ है, मेरा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के अंदर मेजर है। हम्म। और मेरा सीजीपीए जो है वो 3.78 है। और हम्म। सर एक ना कन्फ्यूजन ये आती है, क्योंकि मैं अभी सीएससी के लिए काफ़ी अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये सिचुएशन आती है कि जब मैं अपना सीएससी के पोर्टल पे जाके देखता हूँ अपने मेजर्स, तो वहाँ पर ना मेरा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के पर्टिकुलरली वहाँ पे नहीं आ रहा होता। वो काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर मेरा इसका जो है ना काम होता है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का। तो वो एक कन्फ्यूजन ही रहती है कि आया कि मेरा कम्युनिकेशंस के अंदर आएगा या फलां के अंदर आएगा, तो मुझे प्रोफेसर से पूछना पड़ता है। तो जापान के अंदर जब मैं मैक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम्म। उसके अंदर भी सर इसी तरह का इशू आएगा। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? क्या आया कि मैं प्रोफेसर से ही डायरेक्ट पूछूंगा या क्या सीन होगा? प्रोफेसर से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई करें और ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा गूगल से कि आपका जो रिमोट सेंसिंग का या जीएस का फील्ड है, जापान में इसके रिलेटेड कौन सी डिग्रीज करवाई जाती हैं, फिर आप उस डिग्री को देखें और फिर अप्लाई करें। हम्म। ठीक सर, हाँ सर, यही कन्फ्यूजन रहती थी, क्योंकि मेजर वो कोई और नाम से होता था, लेकिन बीच में मेरा भी काम होता है उसके अंदर। क्योंकि पाकिस्तान में तो रिमोट सेंसिंग जीआईएस के ऊपर ही डिग्री करवाई जाती है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं करवाई जाती है। जी जी, बाई डिग्री के नाम चेंज हो सकते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी डिग्री उसका हम उस नाम के साथ कौन उस तरह के रिलेटेड कौन सी डिग्री करवाई जा रही है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप प्रोफेसर को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक ठीक सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि आइल्स के जो मार्क्स होते हैं वो एग्रीगेट में ऐड होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मैंने भी दिया नहीं हुआ। जी 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 जी, होते हैं, कोई मसला नहीं, आप कर लें। आपने अगर नहीं भी किया हुआ, प्रोफेसर अगर आपसे डिमांड करेगा तो आपने करना है, अगर प्रोफेसर आपसे डिमांड नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं। और अगर आप करना चाहते हैं फिर भी तो उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा, कर लें। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, it is completed from my side and I hope I have already answered all the question. Thank you so much. Yes, Mr. Daniel, you can ask your question.
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे यार सीजीपीए जो क्वेश्चन बीएस की है। क्वेश्चन क्वेश्चन की स्पीड जो है ना, आपने वो 150 किलोमीटर पर सेकंड रखनी है, जल्दी करें। सर वो मैं ना बीएस कर चुका हूँ, एमएससी थर्ड कर रहा हूँ यूएफ फैसलाबाद से। सर मेरा हम्म, बीएस में जो है ना सीजीपीए वो 3.38 है। उसके हिसाब से मेरा हम्म, एग्रीगेट 72% बन रहा है। तो क्या ये हम्म। बीएस का इंक्लूड होगा सिर्फ, या एफएससी और मैट्रिक का भी साथ इंक्लूड होगा? सिर्फ सिर्फ बीएस का, सिर्फ बीएस टोटल का लास्ट एग्रीगेट डिग्री। जो बनता है। जो आपने डिग्री की होती है, लास्ट डिग्री उसका इंक्लूड होता है, बीएस का इंक्लूड होगा। जी, तो नेक्स्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्या क्या? यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करें। जी ठीक, ओके, थैंक यू। ओके। ओके। उस्मान, आप इसको कंक्लूड करें। आई थिंक ऑल द सेट्स हैज बीन। जी अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इट रियली वाज एन इंफॉर्मेटिव और सेशन। और और मैं ये अपनी जो PPT है आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इनको दे दीजिएगा, फिर भी किसी का क्वेश्चन रह जाए तो आप ईमेल पे या लिंक्डइन पे पूछ लीजिएगा। जी ओके, आप इसको कंक्लूड कर लें। अब्दुल्ला भाई, सेशन मैं एंड करूंगा एक हदीस नबवी के साथ। जी सईद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुरावी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो सिर्फ बदला चुकाए, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जो टूटे हुए के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, वाज इंफॉर्मेटिव सेशन। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ख्याल क्वेश्चन रखें है अपना। तो